ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज का भी जो आर्टिकल है ये इटर्नल कंपेनियन से दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्वामी ब्रह्मानंद जी की। और हम लोगों के यहाँ तो रामकृष्ण मिशन में ये परंपरा है कि जैसे श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, उसी प्रकार ये इटर्नल कंपेनियन भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। उसमें साधना के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं और आज भी हम देखेंगे काफी साधना के विषय में बातचीत है। तो आज कौन देवाशीष कर रहे हैं? समरी? दिलीप सर। दिलीप। हाँ दिलीप भाई करिए। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम महाराज जी। I am the last batsman for the year 2023 in doing okay. Last batsman doesn't know how to play. Here is the because the last batsman is always immature player. So mine. So you are the very mature, have become already very mature after so many. ब्रह्मानंद जी महाराज ने ठीक है ये ब्रह्मानंद जी महाराज ने साधकों के जीवन की अनेक जटिल समस्याओं को बड़ी आसानी से सुलझा देते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ब्रह्मेशानंद जी महाराज ने संडे टॉक्स में एटर्नल कंपेनियन पर वार्तालाप शुरू की है। मां शारदा देवी, श्री रामकृष्ण देव एवं स्वामी विवेकानंद जी के आशीर्वाद से आपके समक्ष द एटर्नल कंपेनियन के चैप्टर 3 स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की समरी कर रहा हूँ। महाराज जी, यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि जो प्रत्येक साधक के द्वारा रखे गए हैं सवाल, वो सब यह दर्शाते हैं कि शायद स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमारे प्रश्न ही बताए हैं और उसके स्पष्टीकरण में भी जो बताया गया है वो बहुत हद तक हमको हमारे प्रश्नों का सही समाधान है। अब मैं प्रश्न उत्तर की समरी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। वाराणसी 24 जनवरी 1921। क्वेश्चन नंबर 1, आर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गोइंग वेल? ब्रह्मानंद जी महाराज ने साधक से पूछा। द रिप्लाई, नो, even after all efforts, not happy, no peace of mind. It may be because of evil sanskar. Swamiji replied, you should not think so, and gave the solution of practice japa early in the morning. If not possible, then at the dead of night. Do not waste time. Practice sadhana for some time. Second question, the problem of not early rise in the morning and other problems of indigestion if they rise early in the morning. Swamiji replied, do not take much food at night. Reduce the diet to a half. Your body will adjust to lesser diet and you will active and in perfect condition. Swamiji gave his experience. When we practiced sadhana in the early days, we used to take only a single meal during the whole day and night. The body used to remain fresh and light. Swamiji gave teaching that sadhaks should learn the spiritual path from some great soul and methodically follow it. Sadhaks should not haphazardly do it. By doing methodically, the lust, anger, and greed gradually leave him, which leads to the spiritual life. Sadhak should try to remove rajas and tamas from the mind and make the mind pure, which leads to sattva. And sattva leads to the pleasure in sadhana, and sadhak will feel pleasure in sadhana, which leads to the devotee more time in sadhana. Purity of mind devote to japa and meditation. When the mind becomes awakened, then it inclines towards spirituality.
The procedure for meditation is shown by Swami Brahmananji. First, to think of the bliss divine form of your Ishta. Second, the senses should be kept under control, which is definitely a very difficult task, but the continuous practice of 7 or 8 years, then a sadhak will get the fruit of peace and bliss thereof. Swami Brahmananji said, the women have greater faith than men and they succeed in a shorter time. Lord is always with sadhak. If sadhak practices a little, then Lord will extend his helping hand to him. Lord always protects sadhak from miseries and troubles. Swami Brahmananji says, meditate on the form of Ishta along with japa. Otherwise, japa does not become effective. Begin meditation on the lotus feet of the deity. Varanasi, February 21. Sadhak asks the question that he is not getting interest in practice japa and meditation and is struggling on. To this, Brahmananji Maharaj gives reply that in the beginning, one has to struggle hard. He has to concentrate with all energy he has on his achievement. He should have a burning dissatisfaction and ask the question to himself, what progress am I making? Sri Ramakrishna Dev used to say to the Divine Mother, another day is gone and I have not seen yet. Every night before going to bed, think for a while how much time I have spent in doing good deeds and on useless things. How much time spent on sadhana and how much time wasted in idleness. Make mind strong through tapasya and brahmacharya. Brahmananji Maharaj gave an example of rich man's house doorman. Here also compared to a resting horse. If not controlled by a rider, then the horse takes to a wrong path. Only by a tight holding reins can control the horse. So similarly, a sadhak should also control his mind. Swamiji said, sadhana is possible only by yearning, faith and devotion. Without tapasya, it cannot be achieved. Swamiji gave example of Buddha, Sankara and Chaitanya and others who are avatars, but they have to practice tremendous austerities in their lives. Further, Brahmananji Maharaj says in the beginning, sadhak should have faith, it can blind faith towards the Guru or some great souls. Then only he can advance towards the goal. Swamiji gave example of oyster, how a pearl can be made. Similarly, sadhak should dive deep into the spiritual practice. Swamiji says, japa and meditation cannot be done unless he crosses the hurdle of tapas and rajas and establishes in sattva. And later on, sadhak has to rise above sattva, from where there is no return. Self-surrender, when achieved, then everything is achieved. Swamiji says, life a man is 100 years. Life of a man is 100 years. Give up worldly pleasure. If you want to enjoy eternal life and with it eternal bliss, to get a taste of real bliss, one has to proceed with... Your is not closed, Didi. You close this one. Your first you close, again you go. I am sending you link. निवेदिता जी, yes, ठीक है. निवेदिता जी म्यूट कर लो. To get a taste of real bliss, one has to proceed with meditation, which pures the mind, which follows towards the realization of God. One should not spend all the energies in worldly things. Start worshipping God. Think of God while doing work and in between the work and also after finishing the work. Swamiji says for God realization, start with dualism. Later on, you will see God within yourself and your sin will not affect you. Sadhak asks the question on meditation. Does meditation on the east, in the heart or in the head? Which is correct? On this question, Brahmananji Maharaj says meditation differs in sadhana.
But it is better to meditate on East in heart. Heart is a temple where God sits. Sadhak asks the question, after some progress on spiritual path, stops further advancement. No, Maharaj, it is after some progress on spiritual path, stops further advancement. What is the reason? The reply is weakness of mind. Unless you have strong mind, lust and anger overpowers mind. Next question asked, Maharaj inquires from the sadhak about the spiritual progress. Swamiji replies, that is, he is nobody to instruct you. It is only God who is there, who does. Belur Math, December 1915. Sadhak questioned about roaming of mind while sits in meditation. Swamiji gives solution that never start meditation immediately. First, for some time, read religious books, sit on the asana, erect without movement, then begin japa and meditation. Mind will naturally stop watering. In Kali Yuga, japa is the easiest path for God's realization. Japa uninterruptedly for 3 years. You will realize God. God will grow in you. At times, go in seclusion for 7 days or even more. Even with some person of same temperament in order to avoid depression. Try to take food by Madhukari, which is pure and pious food. During sadhana, the quantity of food also should be cut down to 3/4 and later on to 50%. So also less sleep. If possible, meditation should be done at the midnight. But if not possible, the early in the morning. Balram Mandir, Calcutta, 4th February 1918. Sadhak questioned, which are the 2 ways the mind can be made steady? Brahmananji Maharaj says, you should see both mantra and also see form of the East. When you see your East, then you should start to see him from the lotus feet of your East. Offer your salutation at his feet and then visualize his face and other parts of the body. Man can short or long, but you will know its power in a short time. Jap can be performed with 4 fingers or without. There is no harm. By regular practice and punctuality, you can study of your mind. In morning hours, after reading few pages of holy scriptures, sit silently for some time, then sit for meditation. Then your mind will not run here and there, and you will find the effect of meditation. Here, Brahmananji Maharaj says, after meditation, abruptly, you should not divert your attention to secular affairs. Otherwise, it will not only harm in general, but deter the growth of your mind towards the spiritual realization. Here I will say, our Brahmesananji Maharaj has never complained, and he has never scolded us for our behavior in Sunday talks. Sunday talks की समाप्ति पर हम ऐसे भागते हैं जैसे जेल में छोटा कैदी. It is not for all, but someone, or at least for me. I have to improve here. Japa and meditation are good for mind. Practice minimum for 2 hours in the beginning, and later on it should be increased. Balram Mandir, Calcutta, 09 February 1918. When in meditation on the East, the forms of other gods or goddesses come in mind, then always think it is good sign. Later on, all the other forms will merge into your East. Swamiji says, more time for japa be given on Amavasya, Purnima, Ashtami Tithi. Further, he said, keep your promise and time given to someone at any time, at any cost. We have to keep our promise. 1st June 1913, yearning for God be possible by keeping holy company and from instructions of the Guru. Peace can be attained by rousing unrest in the heart. To know and see the God, practice sadhana and wait for his grace.
and in time you will have his vision. 25th April 1930. In meditation, desire and passions have no place. At times during meditation, you see some light or hear pranav sound. It is a good sign, but do not stop here. You have to reach still in a higher path. God can be realized either by devotion or faith. Pranam Maharaj. अरे भाई तो बहुत बढ़िया किया तुमने, तो वो अब और ज्यादा लगाएंगे, वेरी कुछ गुड। ज्यादा काम करवाएंगे, तो बहुत बढ़िया किया आज तो सबने। हम पूरे को उसकी हमने इसको जो ओरिजिनल को भी हम ट्रेस करते रहे, साथ साथ देखते रहे। थैंक यू वेरी मच। चलो महाराज, ये तो माँ की Thank you. कृपा है जी। पता नहीं बाबा माँ की कृपा है कि बाप की कृपा है, गाने पे पड़े हैं। अच्छा, तब क्वेश्चंस लेवे। जी अच्छा, तो अब सबसे पहले हमारे इसके अंदर है इतू। इतू घोष। प्रणाम महाराज। हम्म, मेरा पहला प्रश्न है फ्रॉम द टेक्स्ट, faith cannot be held in the beginning, cannot be had in the beginning. First realization, then faith. At first, the aspirant has to pin his head. It may be blind faith. So my question is, for most of the aspirants, realization is the last stage in spirituality with false or imposed faith. How one can, spirituality with false or imposed faith, how one can advance? देखो ऐसा है, क्या है तुम्हारा ब्लाइंड फेथ की बात चल रही है ना जी। तो किसने कहा है? किसी स्वामी जी ने कहा है कि फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है या स्वामी विवेकानंद ने कहा, किसी ने कहा है कि फेथ विद आईज एंड फेथ विद ब्लाइंड फेथ, ऐसा दोषा नहीं होता। फेथ जो है वो हमेशा ब्लाइंड ही होती है। हाँ, याद रखो। तो इट इज ऑलवेज ब्लाइंड। if not it becomes, यदि वो ब्लाइंड नहीं होगा तो रियलाइजेशन हो जाएगा। और यहाँ पे महाराज क्या बोल रहे हैं? हाँ, वहाँ क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर रियलाइजेशन फेथ विल कम। क्या कह रहे हैं? हाँ, faith cannot be had in the beginning. First realization, then faith. यस सच पूछा जाए तो अगर रियलाइजेशन हो गया तो फेथ का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं रहेगा। हाँ, मतलब ये है कि वो क्या है कि वो रियलाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। कहते हैं अरे भाई रियलाइज करो, क्या क्या फेथ कर रहे हो, ब्लाइंड फेथ करने से क्या फायदा होगा, रियलाइज करो रियलाइज करो। उस रियलाइजेशन को वो इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अच्छा, तो इसमें अच्छा किया तुमने, ये रेज्ड ए क्वेश्चन so that we can discuss. We have discussed it, so that very important is that begin with whatever faith is there, blind faith is there, जो भी हो गए, और उसको रखें और तुम लगे जाओ, try to have the realize. That is the crux of the main thing. Okay? नहीं, बोलो बोलो, अभी any difficulty discuss, we'll discuss it. नहीं हाँ। महाराज। हाँ अच्छा। और मैं, हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है, द माइंड इज टू बी रेज्ड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द ग्रॉस स्टेट टू द सटल, देन टू द कॉजल स्टेट, स्टिल फर्दर टू महाकरण, द ग्रेट कॉज, एंड द महाकरण, द ग्रेट कॉज, एंड फाइनली टू समाधि. So my question is, what are these causal and Mahakaran states? Please discuss it elaborately. My idea is not clear about this. Very good. देखो, ग्रॉस स्टेट समझते हो? हाँ जी। वो भगवान जो हमने ग्रॉस, भगवान को हमने क्या है, रूप के रूप बना लिया, भगवान का रूप का ध्यान कर रहे हैं, ठीक है ना? जी। वो थिंक ओनली ऑफ गॉड, कैन थिंक फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में क्या है, उसके बाद हम भक्ति करने लग गए, मंदिर जा रहे हैं, इंसेंस बर्न कर रहे हैं, ये सब क्या हुआ?
हमारा सब जो है वो भौतिक ग्रॉस ग्रॉस लेवल की हाँ भक्ति है, ठीक है ना। जी अच्छा, उसके बाद में भक्ति क्या, थोड़ा प्रेम आ गया। हाँ, भगवान के ऊपर प्यार करने लग गए। हाँ, देन जी दो थोड़ा सा और जप करने लग गए। तो ये किस लेवल पे आ गया, मेंटल लेवल पे आ गए ना। जी मेंटल लेवल पे आ गया मनी मन भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान को प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम तो ग्रॉस होगा नहीं, हाँ प्रेम हो गया है, अच्छा लग रहा है। ये कहाँ हो गया, ये होगा मेंटल लेवल पे। mental. अच्छा, जी अब इसके आगे चलो। सटल लेवल हाँ, उसके बाद में क्या है, उसके एंड बाद देन में द कॉजल वन स्टेट थॉट के ऊपर चले गए। वन एक फीलिंग भक्ति की रही बस, और कुछ नहीं। अब विचार भी नहीं आ रहे हैं। ओह सो भगवान के कॉजल साथ स्टेट क्या में, है हाँ, कॉजल भगवान स्टेट के साथ में एक भाव जुड़ गया है। जी नहीं कॉजल स्टेट क्या वो और जो है ना, वो क्या है, जी ग्रॉस, ये कॉजल स्टेट, इसको हम बोल देंगे, कॉजल स्टेट कह सकते हैं। ओ हाँ, कारण शरीर पे आ गए हम। तो कारण शरीर में केवल अवस्थिति भगवान की हम अनुभव कर रहे हैं। अच्छा हम्म। और अच्छा महाकारण जो हुआ, हम्म उसमें क्या है, महाकारण का मतलब है कि कॉस्मिक बॉडी, यानी हमारा एक आत्मा ये है और परमात्मा है, उसको महाकारण कहेंगे। ओ तो महाकारण में हुआ कॉस्मिक बॉडी का रियलाइजेशन, उस लेवल पे आ गए कि हम भगवान के साथ में एकत्व का अनुभव करने लग गए हैं। अच्छा ये हुआ महाकारण लेवल। महाकारण ये बहुत महाराज ऊंची है। महाराज हम्म हम लोग कौन से स्टेज पे हैं? दूसरे स्टेज हम पे है ना? लोग जनरली है ना पहले और दूसरे स्टेट। जी एट द मोस्ट वी गो टू द थर्ड लेवल, कारण शरीर के लेवल पे। जी जी ठीक है माय ऐसा है ना, यू सी, मोस्ट ऑफ अस आर फिजिकली बाउंड, वी कंसिडर आवरसेल्व्स एज बॉडी। जी इतना स्ट्रांगली बॉडी को फील करते हैं, इसलिए भगवान को भी एक बॉडी के रूप में फील करते हैं। श्री राम कृष्ण का रूप है, श्री राम कृष्ण का फोटो है, लीला चिंतन है, ये सब तो फिजिकल लेवल पे चलता रहता है। वो श्री राम कृष्ण इसके पहले पीछे के एक सत्ता है, वो आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा जब आएगा तब तो वो सूक्ष्म शरीर पर आएगा। उसके बाद में श्री राम कृष्ण की एक अल्टीमेट सत्ता होगी, हम अपने आप को एक आत्मा समझने लग जाएंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये बड़ा डिफिकल्ट है सच में। जी हम्म। my third question is when I do japa I clearly perceive the mantra shining bright and effulgent before my eyes. So my question is, seeing mantra effulgent, is it not almost seeing God or much advanced state in spirituality? It is an advanced state, definitely. Definitely, it is an advanced state. Oh, हम Definitely लोग advanced state, but it is not seeing God. oh, it is not seeing God. God realization नहीं है वो, लेकिन अच्छा उच्च अवस्था है और अनुभूति है। A higher level of experience is there. It is an advanced state, definitely, but not अच्छा God realization. okay. Acha, my fourth question is, you must do more japa and meditation on Amavasya, Purnima and yes. Ashtami Tithis. Why these Tithis are special and why not Ekadashi? अरे एकादशी को तो सभी करते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं। अच्छा एकादशी को सभी करते हैं, बाकी दिन नहीं करते हैं, उसको करवाने के लिए कराए और कुछ नहीं। बट दूसरे दिन स्पेशल डेज में क्यों ज्यादा अच्छा होता है जो वाइब्रेशन भी हो, अच्छा यानी वो कहता है, कैसा है कि ना, अमावस्या, अष्टमी और पूर्णिमा, तो ये पूर्णिमा क्या हुआ, वीकली हो गए ना, जी हर 7-8 दिन में हो रहे हैं ना। जी आठ और सात yes. ये दैट इज द जी एडवांटेज ऑफ जी जी एकादशी। तो है ही, एकादशी तो जी एवरी 15 डेज एक एकादशी हो रही है। आती है हाँ लेकिन हाँ। इसमें ये तो है कि बीच में आ गया 15 दिन को ब्रेक कर दिया 2 में, जी अच्छा समझे ना। जी तो जी इसमें जी पूर्णिमा, उसके बाद अष्टमी किया, फिर अमावस्या आ गई,
फिर अष्टमी किया, फिर हम पूर्णिमा आ गई, तो आ ये गई। हर 15-15 दिन का ये हो जाता है। हाँ लेकिन महाराज इसका इम्पोर्टेंस क्या है ऑफ दैट पर्टिकुलर डे? ना ना ना, वो इम्पोर्टेंस यही है, वो कुछ नहीं है, तो सभी करो, प्रत्येक दिन ही वो अच्छा है। लोग अच्छा नहीं कर पाते इसलिए कह रहे हैं कि पूर्णिमा इम्पोर्टेंट है, अमावस्या इम्पोर्टेंट है, अच्छा अच्छा। अष्टमी इम्पोर्टेंट है। अब यूं अच्छा। कहो तो भाई पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा जो है पूरा प्रकाट रहता है, तो उसका जो है वो जो है वो जो इम्पैक्ट है वो प्राकृतिक इम्पैक्ट कैसा है। फिर अमावस्या के दिन तो पूरा बंद रहता है, तो उसमें हाँ। क्या क्या एटमॉस्फेयर में क्या चेंज होता है, ये सब बातें आ जाती हैं। अब अच्छा। दैट इज नॉट, आई मीन, जो साधक है वो ये सब चीजें थोड़ी देखता है कि अरे आज पूर्णिमा है तो आजकल आज के जो स्टार्स अच्छे हैं, जैसे ग्रह नक्षत्र किसी, वो कहते हैं ना कि जिस दिन वो आया ग्रहण हुआ या ऐसा ग्रहण हुआ तो उसमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल उस समय प्रकृति जो है वो स्पेशल रूप धारण करती जी। अच्छा है। लेकिन जो साधक है वो उसके लिए तो सभी दिन अच्छे हैं भाई। हाँ जी। हाँ लेकिन ये जो आती है ना पूजा वगैरह, वो जैसे दुर्गा पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, ऐसे ही पूजा वगैरह के दिन में वो दिन अच्छा ज्यादा क्यों अच्छा, बोला वही तो जाता मैंने यही तो कह रहे हैं, है? इसीलिए अच्छा। पूर्णिमा भी अच्छा है, अमावस्या भी अच्छा है। हाँ नहीं हाँ नहीं तो तुम हाँ तो करोगे ही नहीं। हाँ। अरे सही है। महाराज, बात है। जी। महाराज संधि जैसे अक्षय संधि तृतीया पूजा। होती है, उसमें अगर हम्म। जप करे तो उसका फल बहुत ज्यादा बढ़ता है। हाँ हाँ बाबा, हाँ, तो इसीलिए इसीलिए तो दुर्गा इतने पूजा में सारे भी ज्यादा फल सं, मिलता है। हाँ संधि हाँ वो सब है, संधि लेकिन पूजा। जो जो हाँ प्रतिदिन करने वाला है ना वो सोचता ही नहीं कि ये अक्षय तृतीया, उसके लिए हाँ तो हाँ। प्रत्येक दिन अक्षय तृतीया है भाई। ठीक ठीक। दैट इज द पॉइंट। महाराज, पर ठीक है। मन भी उस समय ज्यादा लग जाता है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। भाई हम लोग हमारा तो तो संसारी है ना, उस यानी समय मन इतने फटाफट लग इतने जाता है। इतने साल हो गए, इतने बूढ़े हो गए, अभी भी अक्षय तृतीया के दिन अच्छा लगता है। सारा दिन क्यों नहीं लगता, सारा समय क्यों नहीं लगता, प्रत्येक दिन क्यों अरे नहीं लगता, ये क्या बात महाराज, है। कितना काम रहता है। ओहो वो अक्षय तृतीया के दिन सब काम वाम पहले खत्म कर लेते हो ना, उसके दिन अक्षय हाँ तृतीया महाराज, यही बात है, बैठ जाते हैं एकदम एक जगह 5 घंटा 6 घंटा आराम पहले से होते रहते पहले हैं। सब पूरा कर लेते हो, सब पहले उसका पहले सब निपटा के फिर तैयार हो जाते हाँ, यही बात है। हो। ठीक है चलो। जी। मेरा मेरा हम्म हो गया। प्रणाम हम्म महाराज। हम्म। सतीश विग, सतीश कुमार विग। नॉट सीन, नॉट सीन। ऋषविक नहीं नहीं अभी दिख रहा नहीं रहे दिख हैं। रहा, यहाँ नहीं दिख रहा। अच्छा चलो फिर आगे नेक्स्ट कौन है। एक मिनट। शिवानी। नहीं। हाँ जी शिवानी, महाराज। हाँ भाई चलो बोलो। प्रणाम महाराज। हम्म एक मिनट महाराज। महाराज, 2 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 155। Japa and meditation are हम्म impossible unless you transcend the limitations of rajas and tamas and become established in sattva. Please explain this, as this is not possible. I think so. Now that is true, it is not easily possible. This is the ideal state. यस। ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं, अरे तुम लोग क्या करोगे, नींद तो आती रहती है, बैठे हैं फिर नींद आ रही है, तो करना तो है, किसी तरह करते हैं। या फिर रेस्टलेस है, मन चंचल है, फिर भी कहते हैं बैठो करो, मन चंचल रहता है फिर भी जब ध्यान करना पड़ेगा। सत्व सत्व होने के बिना ठीक ठीक ध्यान नहीं जब नहीं हो पाता। तो ये दैट इज एन आइडियल स्टेट बता रहे हैं, उसको महत्व देने के लिए कि अपने आप को ट्राई टू रेज योर सेल्फ टू द स्टेट ऑफ सत्व, दैट इज द ओनली थिंग, दैट्स ऑल। महाराज जी, सत्व ऑफ तमस, सत्व ऑफ रजस ऐसे भी बोलते हैं ना? तो वो बोलते हैं, लेकिन सत्व और तमस, सत्व और रजस ये क्या है, वो दोनों मिक्स हो गए और कुछ नहीं।
पॉइंट महाराज जी, जितना हो सके अपने आप को सात्विक लेवल पे ले जाने का प्रयत्न कीजिए। हम लोग अत्यंत रेस्टलेस है, तमोगुणी है, और उसको संघर्ष करके गीता में उसको डिटेल में तीनों को उन्होंने वर्णन किया है, कैसे करना क्या है, वो उनका स्वभाव बताया गया है। उसके अनुसार अपने को सत्व के लेवल पे रहने का जितना हो उतना प्रयत्न करना चाहिए और ध्यान जप करना चाहिए। जी महाराज। ठीक अब है ऐसा है कि अगर ध्यान करते रहे नींद आवे तो आंख खोल के करो, तो कम से कम तमोगुण को थोड़ा सा अपने संघर्ष के दूर किया। बैठे हैं, मन चंचल है, शरीर चंचल है, तो हाथ पैर मत हिलाओ। तो इस प्रकार से तमोगुण और रजोगुण को कंट्रोल करने के कई इंस्ट्रक्शन दी जाती है। ठीक है महाराज, मैं इस वे से नींद वाला तो चलो ठीक है आपने बताया, पर मैं इस वे से सोच रही थी कि रजस और तमस की हम जैसे संसारिक काम करते हैं या वर्क प्लेस है या कुछ और, तो उसमें ये दोनों गुण आ ही जाते हैं, मतलब हम कंप्लीटली तो इग्नोर नहीं कर पाएंगे, पर हाँ ठीक बाकी है। सब चीजें सत्व की कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, डेफिनेटली वो तो समझ जा, तीनों गुण तो है। कोई चाहे कितना भी उच्च कोटि का साधक हो, तमोगुण और रजोगुण को तो संघर्ष करना ही पड़ता है उसको। ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 169। इफ यू गिव अ वर्ड टू एनीबडी यू मस्ट कीप इट कम व्हाट मे, इन व्हाट विच कॉन्टेक्स्ट सेड सो? ये सत्य की साधना, सत्य जो है उसकी प्रैक्टिस ऑफ सत्य, ठाकुर कलिकाल में बोलते हैं ना, कलिकाल में सत्य है, सत्य जो है उसको तपस्या कहा ठाकुर ने। तो इसलिए सत्य को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तुम किसी को बोल दिया है कि मैं अब अमुक समय पे आऊंगा या आऊंगी, तो उस समय वहां जाइए, उसको आप ब्रेक मत कीजिए, नहीं तो वो क्या होता है। कमिटमेंट हो गया ना महाराज, वो तो मतलब ठीक है, मैं काफी टाइम से जैसे स्वामी जी को पढ़ रहे हैं तो वो चीज तो कर ही रहे हैं कि कमिटेड तो रहते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ये स्टेटमेंट आई ना बीच में, तो ये सत्य की प्रैक्टिस है, सत्य को तपस्या के रूप में लिया। अच्छा, कि सच बोल रहे हैं तो मतलब जो बोल रहे हैं वो करना भी है। हाँ, नहीं तो मत बोलो। ठीक है महाराज हाँ, जी, ये एग्जाम्पल रामकृष्ण देव का दिया है ना, कि एक बार उन्होंने किसी को कहा था कि मैं आऊंगा, तो वो नहीं जा पाए किसी कारण से, तो रात को 12 बजे के पहले पहुंचे। हाँ, वो अफीम लेने। हाँ, और उसके बाद में देखा कि दरवाजा बंद हो गया, हाँ तो हाँ, वो अफीम पैर अंदर में डाल के और वो चिल्ला मैं के आया। बोले ले लो। हाँ, जोधू मल्लिक। जो भी हो जिसके। अफीम लेने गए, और फिर शौच के लिए भी एक वापस बार। दे दी। हाँ, शौच के लिए भी है। शौच की इच्छा नहीं भी हो तो भी जो है तो भी लाएंगे। नहीं। तो भी जाना है। दिलीप भाई, थैंक यू महाराज, प्रणाम महाराज। हाँ ओके महाराज जी, मेरे प्रथम सवाल है, माय फर्स्ट अच्छा, क्वेश्चन। ये मेरा वीडियो एडजस्टमेंट ठीक है तो अभी कि नहीं है? हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक है ठीक है महाराज, बिल्कुल ठीक। ओके ओके ओके, ठीक। इट्स परफेक्टली फाइन। हम्म महाराज जी, फर्स्ट क्वेश्चन, पेज 149। All inner truths will be revealed if you practice sadhana for some time. Maharaj ji, what is all inner truth? इनर ट्रुथ, हाँ, आंतरिक सत्य जो है, जो हम जानते नहीं है। क्या जानते नहीं है? कि आत्मा है, हमारी आत्मा है। जी, कि आत्मा जो है देह से अलग है, हाँ, और ये शरीर जो है, तो जितना हम शरीर को प्यार करते हैं, लेकिन ये शरीर बिल्कुल गंदा है। हाँ, और आत्मा, हम यदि सत्य का पालन करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार की जो बातें हैं, अहिंसा क्यों आवश्यक है, ये साधना के विषय के जितने लक्ष्य के विषय में, साधना के विषय में, ये सारी जो बातें हैं इनको इनर ट्रूथ कहते हैं। अच्छा, राइट जी महाराज। धीरे धीरे केवल पेपर पर, कागज किताब पढ़ने से नहीं, ये हम साधना करने से ये इनर ट्रूथ अच्छी तरह समझ में आते हैं। ओके, राइट महाराज जी। Now next question on the same page 149. Brahmanand Ji Maharaj says 3/4 and later on half quantity of food sadhak should take. My question is, in empty stomach, it is not possible to do japa and meditation because every time attention is diverted towards empty belly. तो ऐसा है कि
ये उच्च कोटि के साधक जो हैं वो एकांत में रहने वाले साधक है। ब्रह्मानंद जी के पास में जो आए थे लोग, कुछ लोग थे, वो उच्च जी, कोटि के साधक थे। वो चाहते थे कि वो उच्च स्तर पर उठें, तो वो बराबर। कहते थे कि तुम एकांत में रहो, लोगों से मत मिलो। हम्म, जैसे यतीश्वरानंद जी थे, तो जी, यतीश्वरानंद जी वो अकेले रहते थे, एकांत में रहते थे, 14 घंटे ध्यान करते थे। हम कल्पना कर सकते हैं? my God, ब्रह्मानंद जी के टीचिंग से उसमें लिखा हुआ है कि एक जी, साधक को 14 घंटे ध्यान करना चाहिए। हाँ, हम लोग तो ये सुन भी नहीं सकते, समझने की बात करो, छोड़ो। तो ये उच्च कोटि के साधकों के लिए है। अच्छा, उनका क्या है कि सुबह थोड़ा सा खा लिया और हम्म, उसके बाद में अकेला चले गए एकांत में, हाँ, और उसके बाद में रात को थोड़ा खाया नहीं खाया। जी, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट पढ़ोगे, उसमें भी ये है कि जो अच्छा, साधक होते हैं वे थोड़ा सा कहा के चले जाते हैं हाँ, जंगल में, और सारा दिन वहां पे रहते हैं, फिर शाम को आते हैं, थोड़ा सा फिर खा लेते हैं। है वो यानी पेट को हल्का रखना है, यहाँ पे थोड़ा इतना खाना है कि उस संसार का काम, वो शरीर बना रहे बस। और वो जी, मेहनत थोड़ी करते हैं, हर काम थोड़ी करते हैं। तो जी, उनको एनर्जी, कैलोरीज जो है उससे भी तो कम चाहिए, आवश्यकता है, एनर्जी भी कम चाहिए। यस, अच्छा, हाँ, दूसरी बात यह है कि ये भी कहा है कि उम्र 40 बरस की उम्र के बाद में खाना आधा कर देना चाहिए। ओ ये माय भी आप गॉड, मेडिकल दृष्टि से कहा गया है। अच्छा, जवान लोग जो है वो डबल खा ले, कोई बात नहीं है, लेकिन 40 बरस की उम्र के बाद में खाना आधा करना चाहिए, ये मेडिकली कहा गया है। माय गॉड। महाराज जी, मॉडर्न मेडिकल, मॉडर्न 40 के बाद ही मेडिकल खाना मिलता है है। सब। एक्चुअली 40 के बाद ही अच्छा खाना मिलता है महाराज, क्योंकि यू आर स्टेबलाइज्ड इन द सोसाइटी। तो कोई बुलाता है, किसी को हम बुलाते हैं, खाना मिलता है। उससे पहले तो जो भी कुछ हो, दिखता ही नहीं। जब भी हो, मैंने ही करके देखा है। हाँ, मैंने जब 40 45 के बाद में उम्र खाना मैंने कम कर दिया तो बढ़िया रहता था, अच्छा, शरीर बहरी रहता था, नींद अच्छी आती थी। और मेरा जवा यानी अभी भी उम्र जो है वह, यदि मैं ज्यादा खाता तो अभी तक मैं मर जाता। अरे नहीं, यानी अभी भी 85 बरस की उम्र में भी मैं एक्टिव हूँ, इस कारण कि मैं कम खाता राइट, जी जी हूँ। महाराज, करेक्ट। नाउ माय थर्ड क्वेश्चन, पेज 150, at what हम्म, stage lust, anger and greed leave the sadhak from the spiritual life? हम्म। महाराज जी, थोड़ी बहुत तो लस्ट ग्रीड तो लगी रहती है, तो ये कैसे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इसको खत्म करना पड़ेगा और होती है? ऐसा है कि यदि नहीं करो, किसी न किसी करो, तो बुढ़ापे में लोग बने रहेंगे। यानी ऐसे भी लोग हैं, जैसे वो कहानी आता है ना कि वो एक कहा वो है कि घोड़ा बूढ़ा हो गया है तो भी एक घोड़ी को देख के उसके पीछे लगा हुआ अच्छा, है ना, अच्छा, ऐसा होता है। हाँ है, यस, अगर लस्ट ग्रीड को हमने जवानी की उम्र में विचार के द्वारा उसके ऊपर उसको नहीं आपने कंट्रोल किया, तो बुढ़ापे में आदत में भी वो उसके संस्कार बने रहेंगे। यस, इसलिए है कि यहाँ पे कोई डेट नहीं किया है, जिस यथा संभव जितनी जल्दी हो सके उनको छोड़ दो, दूर तो करना ही है, जी जी ये जी, याद रखो। अच्छा, बराबर महाराज भाई। नेक्स्ट ऑन द सेम पेज 150, महाराज, ये अगर साधना करते रहे तो ये अपने आप कम हो सकता ना? छूटना चाहिए, यस, ठीक 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 साधक होगा तो कम हाँ, होगा, सारा मन उसने भगवान में लगाया तो इधर मन जाएगा नहीं, छूट जाएंगे। जी, हाँ, बराबर, तो उसका संस्कार बन जाएगा। जी जी। जी महाराज जी। नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन, think of the form of your East as smiling and full of bliss. Maharaji, now my question is, if my East is Ma Kali, then how the picture of smiling and the full of bliss can be experienced? अरे तो वो तो निवेदिता बोलो तो। हाँ, जवाब दे। ठाकुर को तो हमेशा मुस्कुराती ही काली दिखती थी, मतलब वो अरे ऐसे। इतने इतने लोग जो है, हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी क्या माँ को काली को गुस्से वाली काली देते हैं ना। नहीं बच, नहीं, बच, कोई भी अपने बचपन माँ को नहीं देखेंगे गुस्से वाली। बचपन में से ही लोग वहां पे तो माँ काली का ही पूजा करते हैं ना। हाँ और हाँ, छोटे छोटे बचपन में हम माँ काली को बहुत आनंद करते हैं, उसके साथ नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं, सब मनाते हैं। सब ये मार। तुम लोग जो दूर से देखने वाले हो उनको ये लगता है खाली कि रूप रंग नहीं है,
रूप और हाँ, रंग में हम हाथ फंस में जाते हैं, वो नहीं है। हाथ में तलवार है, मुंडमाला है, हाँ, ये सब मुंह ऊपरी में है। हाँ, जबान निकाली हुई है। ये हाँ सब जो है ना, वो ये जो चैतन्य में ही लोग होती है। जो सुनो, मेरे को बात करने दो। हाँ। जो बंगाली हैं, वो जो नॉन बंगाली हैं, उनको ये सब ऐसी लगती है। हाँ जो बंगाली है उसको हमेशा आनंदमयी लगती है। जी। वो हमेशा जाएंगे, बच्चा जो है, बच्चा भी जाएगा, रोज काली के पास जाएगा, अच्छा लगेगा उसको तो। जी जी जी। हाँ, उसके साथ खेलेगा, करेगा, बिस्कुट मांगेगा, सब करेगा। हम्म। उसके लिए माँ ही है वो। हाँ, तो ये नॉन बंगाली लोगों के लिए भयानक हाँ, लगती है। बराबर। लेकिन हाँ, जो लोग एक्चुअली बंगाली हैं, वो उनको कोई भयानक जैसी थोड़ी देते हैं। बराबर। भले अच्छा। गाना वगैरह होता है कि तेने मुंडमाला क्यों धारी है, तो इतनी हाँ हाँ। करुणामय मुंडमाला क्यों किया है, इत्यादि गाने बहुत सारे हैं। लेकिन जी प्रेममय आनंदमय गाने भी तो हैं कि जतने रगो आनंदमयी श्यामा माँ के, श्यामा माँ को आनंदमयी श्यामा माँ को अपने हृदय में बड़े प्रयत्न से रखो, मन तू जाने वो माँ जाने। इतने अच्छे अच्छे भजन है जो माँ के। गाने हैं। हाँ। इनफैक्ट बराबर। महाराज, वेस्टर्नर्स और यूरोपियंस तो और भी नहीं देख पाते। जो वेस्टर्न और यूरोपियन है वो तो इसको बिल्कुल ही समझ ही नहीं पाते। हम्म। हम ही नहीं महाराज समझ जी, ये पाते हाँ, तो वो क्या ये समझे। बिल्कुल बराबर है कि बंगाली जो है उनके लिए बड़ा। पर आज यदि हम इस पे ध्यान करें तो इसमें स्माइलिंग भी नहीं दिखेगी। हम यदि कृष्ण पे ध्यान करते हैं तो हमको मुरली भी दिखती है और घूमते हुए भी दिखते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हुए दिखते हैं। तो हमें ध्यान जो यहाँ कहा गया है, तो ये स्माइलिंग एंड फुल ऑफ ब्लिस व्हेन वी सी, बिकॉज वी आर हाँ, ब्रॉट अप इन दैट वैष्णव हाँ, धर्म। हाँ। तो तुम राइट। अपने कृष्ण का कृष्ण ध्यान को ही करो, करो। इष्ट निष्ठा होना चाहिए। और जीसस जीसस क्राइस्ट का है, वो अलग प्रकार का ही है। हाँ, हम्म। वो और ही अलग है। Yes. तो हाँ, Okay. Now, my question is page 151. It is He who is protecting us all from miseries and trouble. Yeah, miseries and trouble are spiritually or worldly? दोनों। महाराज जी, वर्ल्डली मिजरीज और ट्रबल्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? भगवान के ऐसे कहानियां हैं ना, बहुत सारी, भगवान रक्षा करते हैं, ऐसी कहानियां हैं। अच्छा। अब वो मैं एक्चुअली बता नहीं सकता, लेकिन पुराने में बहुत कहानियां हैं। ठीक। खाना भी आ जाता है, भगवान कृष्ण हाँ जो है, भगवान खाना भी ला नरसिंह देते हैं, मेहता रक्षा की। करते हैं, तो नहीं करते हैं कि नहीं करते? हाँ, वो तो करते हैं। यस, देयर आर। तो फिर हाँ, नरसिंह तो मेहता वो, की और इनकी करी हुई है सब। हाँ, अच्छा। वो है। राइट राइट महाराज जी, वेरी क्लियर, अंडरस्टूड, वेरी अंडरस्टूड। Next, 153 page. You will be able to work hard for only another 3 or 4 years at the most. Then both body and mind will become weak and infirm, and you will not be able to do anything. Maharaj ji, is it said for sadhak or for worldly person? ये क्या मतलब क्या 3-4 साल? जो भी कुछ करना है वो सब कुछ दिन अभी कर लो, जल्दी करो। 5-7 साल के बाद सब बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग तो हो ही गए हैं। जो भी करना है वो कर लो। खास करके साधक को बोल रहे हैं, कमर कस के अभी से लग जाओ, समय बर्बाद मत करो। दैट इज द पॉइंट। Okay, okay, right Maharaj, right. Next, page 155. What type of discipline to be followed at least for 4 years? Page 155. गुरु ने जो तो कहा है वो करो। प्रत्येक गुरु कुछ कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन, मंत्र का जप करो, ये तो करते ही हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि तुम सुबह उठ के ध्यान जप करो, ये स्वाध्याय करो, कपड़े इस प्रकार से पहनो, अच्छा। खाना कम खाओ, ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और इसके अलावा यदि वो नहीं हो तो पातंजल योग सूत्र के यम नियम है, उसको पालन करो। अच्छा ऐसे अच्छा। कुछ जी। कुछ इंस्ट्रक्शन करना चाहिए। अब मैं जो जानता हूँ कि हाँ मैं प्रारंभ में जब साधक था तो मंत्र जी। जप तो करते थे, गुरु ने तो इतने इंस्ट्रक्शन ज्यादा नहीं दी। लेकिन हाँ अब रोज हर बार जो है ये पातंजल योग सूत्र पढ़ के या जी। ब्रह्मानंद जी की टीचिंग्स इत्यादि पढ़ पुढ़ा के और पॉइंट्स बना लेते थे। 1 महीने के लिए हम पॉइंट्स बना लिए, सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, ध्यान करना है, और चुप मौन रहना है। ऐसे हम बहुत सारे 7-8 जो है पॉइंट्स लिस्ट बना
उसको पालन महाराज जी करो। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है, महाराज जी आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। मुझे लगा अभी वो मेरा नहीं ब्रेक कर रहा है, आपका नहीं, अब कंप्यूटर ब्रेक कर रहा है। क्लियर हो गया जी। नाउ अभी नेक्स्ट ठीक हो गया। पेज 156. Give up the pleasures of these 100 years if you want to enjoy eternal life and with it eternal bliss. Maharaj ji, will you please explain in enjoyment of eternal bliss and with it eternal life and with it eternal bliss? Further, Brahmanand ji Maharaj said in page number 157, page number 157, first paragraph, 9th line. Until you get the taste of supreme bliss, you should practice meditation. How to experience supreme bliss? अच्छा। पहला ये है हाँ कि अमर हो जाओगे जी। तो अमर होने का मतलब क्या है? तो मरने वाले तो हैं, सभी मरने वाले हैं, ब्रह्मांड जी मर गए। हाँ तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता। हाँ बराबर जी। अगर अमर हो जाओगे मतलब तुम ये जान जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ तो जब शरीर की मृत्यु आएगी तब भी तुम कहोगे कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अमर हूँ। जी तो ये अमरत्व हो गया। हाँ। अच्छा, और नेक्स्ट उसके पेज बाद पर में उसके How- बाद में ब्लिस की बात हो गई ना। हाँ, हाउ टू एक्सपीरियंस सुप्रीम ब्लिस। ब्लिस विषयों पर आधारित नहीं, हमारा आनंद जो है वो क्या है, विषयों पे है। अच्छा भजन सुना तो आनंद आया, खाना बढ़िया मिला तो आनंद आया, ये है विषय सुख। महाराज जी ये सेंटेंस जो है, और ये विषय सुख जो है, अरे मैं जवाब दे रहा हूं, इसको पहले सुन लो। हाँ हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि इटर्नल ब्लिस का मतलब ये है कि जो ब्लिस आनंद हमको मिलता है आजकल, वो सब विषयों से मिलता है। अच्छा खाना मिला, अच्छी बातचीत सुनी, भजन सुना, तो ये जो सुख मिला थोड़ी देर मिला और उसके बाद में समाप्त हो जाता है। तो लेकिन ये हमारे भीतर सदा एक आनंद का स्रोत बना हुआ है, ये हम कभी नहीं समझ पाते। हाँ हाँ। तो ये साधना के द्वारा ये होता है कि धीरे धीरे हमारा मन जब शुद्ध होता है तो हम हमारे भीतर जो आनंद का स्रोत है उसको निरंतर अनुभव करने लग जाते हैं। ये हुआ इटर्नल ब्लिस। राइट राइट महाराज, वेरी करेक्ट। आ गया महाराज जी। अब समझ में आ गया आपको, पूरा हो गया? यस यस, 100% क्लियर। नाउ पेज 159. My question number is 9. Such an attitude of mind does not always come to me, my child. At times, of course, the mind is in such a state that I feel I could entreat you all, even touching your feet one by one, and say, do this, my son, do this, I implore you. But again, I think, who am I to instruct you in all this? God is there, and He makes us do. So is it done? Whom to ask? God Himself is the cause. God Himself is the instrument, and He Himself is all. Why should people take my words even though they ask me? But then, my boy, when the inspiration comes from within, then people do take them and follow them. Maharaj ji, please explain, as Brahmanand ji Maharaj first says, who am I to instruct you? And later on says, देखो वो कहते हैं मैं तुम्हें निर्देश देने वाला कौन हूँ बाबा? हाँ भगवान करा रहे हैं, मैं थोड़ी कर रहा हूँ जी। मैं निर्देश देने वाला नहीं हूँ, कोई भगवान है जो मेरे भीतर बैठकर वो सब कुछ करा रहे हैं। मैं तो उनके हाथ का यंत्र हूँ, बस सीधी बात। इसलिए वो अपनी बात क्या कहेंगे, मैं नहीं हूँ बाबा, ये भगवान करा रहे हैं, मैं तो उनके हाथों में सीधा यंत्र हूँ, बस और कुछ नहीं। Okay, right. Next, page number 161. Question number 10. Without intense love and attachment for God, it is very difficult for a beginner to perform sadhana in the right way. This is written. Maharaj ji,
how a beginner has an intense love and attachment for God. Even solitude may at times brings depression. ठीक है, it is difficult, no doubt about it, लेकिन it can be done. इसीलिए साधना इतनी आसान नहीं है। केवल वह जूम मीटिंग हो गया, क्वेश्चन आंसर करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, जम के लगना पड़ता है। ये डिफिकल्ट है लेकिन हो सकती, यही बात है बस। Right. जी. But it is very difficult in the beginning. अरे हमेशा ही डिफिकल्ट है, हमेशा बाद में भी डिफिकल्ट है, उसमें कोई हमेशा डिफिकल्ट तो है ही। अरे संसार में इतना काम करते हैं, फंसे रहते हैं, दिन रात मेहनत लगाते रहते हैं, पैसा कमाना क्या आसान है? उसमें भी लगा रहता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है जी। वो सब साधना तो उससे आसान है जी। Question number 11, page 163. Yoga is not for him who eats too much or too little, nor for him who sleeps or too little. Maharaj ji, what is too much and too little for? There is a barometer, or it differs from a person to person? ना ऐसा है। योगा ना अत्यतृष्णस्तु न। गीता में भगवान कहते हैं कि बहुत अधिक खाने को योग नहीं कर सकता, और जो बिल्कुल खाली पेट रहेगा वो भी योग नहीं। युक्ताहार विहारस्य, यानी हमारे जीवन में समता होनी चाहिए, यही है और कुछ नहीं है। बहुत पेट भर के खा लिया, यही तो संसार में, यही खाना पीना करना है, खाना और सोना, और क्या करना है। दिन में काम करने सुबह चले गए, पेट भर के खा लिया, दिन भर मेहनत किए, रात को आके सो गए, तो उसके लिए योग नहीं हो सकता बस, और क्या। Right. My last question. Do you know what is mantra like? It is just like addressing a man by his name. The moment I address you by your name, your form also flashes in my mind. Similar is the case with the mantra and the form of it that is associated with it. Maharaj ji, do we get the same feeling as we call someone by name? तो ये आपके ऊपर निर्भर है। अब राम बोलोगे, अब राम को बोलोगे, आंख बंद करके राम बोलोगे तो आपके चेहरे में राम आ जाएगा कि नहीं आएगा? आपके भावना में राम आ जाएगा तो हाँ, आ जाएगा। और मन से पूछोगे तो हाँ, तो ये आपके लिए तो हो गया। और अगर आपका तन्मय होकर करेंगे तो भगवान भी सुनेंगे कि अरे ये मेरे को सुना बुला रहा। कितने लोग हैं जो भगवान का नाम करते करते भगवान के दर्शन हो गए, इतने सुनेंगे। तो भगवान का नाम और भगवान दोनों अभिन्न है, विलय हुए हैं। नाम का करते ही हमको भी हमारे मन में राम का नाम लेते ही राम का रूप आ जाता है, राम आ जाते हैं हमारे हृदय में, मन में आ जाते हैं। और अगर आपने तन्मयता से किया तो भगवान राम खुद भी आ जाएंगे। यानी जो संसारिक है वो का वही हमको यहाँ पे मिल सकता है यदि हमने नाम लेने में तन्मयता बताई तो। हाँ, हम संसार नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं संसारी हैं तो भी हो जाएगा। अरे भगवान छोड़ेंगे नहीं। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं तहाँ राम। राम को बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन राम जो है वो इतने आसानी से मिलते नहीं है। सबके लिए भगवान राम है, संसारी हो या वैरागी हो। नहीं, मेरा सिर्फ ये जानना था, जैसे कि हमने बेटे को आवाज लगाया, पिता को आवाज लगाया, तो वो आवाज का जवाब आ जाता सामने से, हाँ मैं आया, बोलो क्या है। तो उसी तन्मयता से यदि हमने राम को आवाज लगाया, कृष्ण को आवाज लगाया, तो वी कैन एक्सपीरियंस आफ्टर सम स्टेज। अरे कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, सारी साधना अनुभूति है ना। हाँ, श्री रामकृष्ण तो कहते हैं व्याकुल होके भगवान को पुकारो, 24 घंटे भगवान को रो तो भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अरे 2 मिनट तो रोएंगे नहीं, आंख में आंसू आएगा नहीं भगवान के लिए। ठाकुर ने तो केवल 24 घंटे
एक दिन में भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन हम 2 मिनट भी नहीं रो सकते हैं भगवान को, 2 मिनट भी पुकार नहीं सकते। जी महाराज, इस मेरा एक सवाल होगा। हम तुम चाहते हो कि भगवान भगवान जो है वो माँ, बच्चा जैसे माँ को पुकारता है ऐसे पुकारने से आ जाएगा? ठाकुर बोलते हैं कि हाँ आएगा, व्याकुल होगा। तो ठाकुर ने रो रो कर माँ को पुकारा था और माँ आई थी, दर्शन हुआ था। और ठाकुर कहते हैं करके तो देखो। हाँ, जी ठीक है। हाँ, जी महाराज जी, बस समाप्त, मेरा सवाल हो गए। प्रणाम। अच्छा भाई। महाराज जी मैं तो मंडे को भेजा था, आपने मिस कर गया मेरा नाम। नहीं नहीं, अब आपका नाम ही तो है। हैं? ओ, क्या बोला है? मेरे लिस्ट में जरा है, सब नाम आया है तो आपका नाम आ गया, तो अब आप इतना क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, नाराज नहीं हो रहा। मैंने मंडे को भेजा था तो वो सोचा कि इतने लोग पहले बोल दिया क्वेश्चन। अरे कुछ उससे पहले भी आ गए थे। ओहो, अच्छा। अबे, ठीक है महाराज। मैं पूछूं महाराज जी? हमारा सुबह आया था, आपका हाँ दूसरा पूछो ना। प्रणाम महाराज। हाँ चलो। प्रणाम महाराज जी। मेरा पहला क्वेश्चन है महाराज जी, पेज 148, फर्स्ट पेज में है, व्हाट इज पुरश्चरणा एंड हाउ इट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ गॉड। अच्छा देखो, पुरस्चरण का मतलब है ये एक प्रकार का जप करने की पद्धति है, याद रखो, इतना ही करना। और इस किताब में नहीं, इटर्नल कंपेनियन में पहले वाला वॉल्यूम हुआ करता था, उसमें इसको दिया गया। कई प्रकार के पुरस्चरण के टेक्निक्स हैं। पुरस्चरण का जैसा है कि बोलो, एक दिन, पहले दिन जो है प्रतिपद के दिन में 1000 जप रोज करेंगे, द्वितीया के दिन 2000 करेंगे, तृतीया के दिन 3000 करेंगे, उसके बढ़ाते बढ़ाते 15 तक, पूर्णिमा तक जाकर तो 15 वहां पे 15000 जप रोज करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे उसको 15000, दूसरे अगले दिन उसको 14000, उसके दिन 13000, उसके दिन 12000, ऐसे ऐसे उसको धीरे धीरे कम करें। ठीक है। ये हुआ। दूसरा प्रकार है, प्रतिदिन 1 लाख जप करेंगे 1 महीने तक, या 20,000 जप करेंगे 1 महीने तक, जितना संभव है। यानी इतना आसान नहीं है, 20,000 जप में भी 8 घंटा लग जाए। तो लेकिन संकल्प करके, आचमन करके, शुद्ध होके करेंगे। और उसके बाद ये भी कहते हैं कि उसके बाद में हवन इत्यादि करना चाहिए। या फिर कहा संकल्प करके, यानी एक उनका रेजोल्यूशन संकल्प करके करना। और उसके बाद जब हमने 1 महीने या 2 महीने तक ये पुरस्चरण करा, उसके बाद में या तो यज्ञ कीजिए, या फिर आप गंगा स्नान कीजिए, या फिर उसके बाद में गरीबों को खाना खिलाइए, ऐसा कुछ करिए। अच्छा। तो इस प्रकार की टेक्निक जो है, इसको पुरस्चरण कहते हैं। तो एक तो है कुछ संकल्प करके कुछ जप, अधिक जप करना एक निश्चित टाइम तक। दूसरा है उसके बाद में या उसके पहले या तो यज्ञ करना, या फिर कुछ दान आदि करना। तो इसके अलावा शास्त्र में लिखा है गुरु से इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए। गुरु बताएंगे, गुरु नियम नक्की कर लेंगे, उसके अनुसार आपको बताएंगे। जी महाराज जी। अच्छा चलो। जी महाराज जी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है महाराज जी, पेज 149 में, is taking meal once in a day is also advisable for the householder devotees who are also working and doing spiritual practices? No, I already told. Only for those who एकांतवास में करें, कर नहीं करें उसके लिए। एकांतवास में 7 दिन कर रहे हैं, उसके बाद उस समय भले ही कर दो, खाना पीना कम कर लो, किसी से मिलोगे जुले नहीं है। 14 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे जब ध्यान कर रहे हो, काम धाम कुछ नहीं कर रहे हो, उनके लिए है। जी महाराज जी। बी इसी पे है, बी क्वेश्चन पे है, इज इट फॉर द पीपल हु, हाँ तो मिल गया, इसका आंसर हो गया। थर्ड में इज इट एक्सेप्टेबल फॉर मेटाबॉलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू टेकिंग मील वंस अ डे? Yes, no doubt about it. Thank you महाराज। Medically allowed. मेडिकली अलाउड, अच्छा। अरे मैंने अभी तो, अरे हम तो ओवर ईटिंग ही करते हैं।
अच्छा। हाँ, जो अभी हम्म, एक्सेल ओवर ईटिंग हो रहा है ना, ये मेडिकली नॉट अलाउड है। अच्छा जी महाराज जी, उल्टा हो गया जी महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 3, 151, in the beginning start with a method suited to your temperament। इन्होंने बताया कि महाराज ने बताया कि you start your method suited to your temperament। So my question is, can an individual choose his spiritual practice without a guru as per his temperament? उस समय तो दीक्षा भी नहीं हुआ था जिसको बताया था महाराज जी ने। ऐसा है कि उसमें ये है कि मंत्र एक है तो गुरु डिसाइड करेंगे। दूसरी हाँ चीजें जो हैं वो अब टेम्परामेंट के अनुसार रीडिंग, राइटिंग, स्वाध्याय, उपवास, तपस्या, पूजा, ये सब बातें हैं, ये टेम्परामेंट के ऊपर निर्भर करती हैं। उसके बाद में अच्छा इमोशन, भावना, तुम भक्ति भाव लोगे या ज्ञान का भाव लोगे, ये। तीसरा, जी महाराज। ये तुम्हारे राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध, ये सब बातें हैं, इनको सब कंट्रोल करना पड़ेगा। जी महाराज जी। और चौथा टेम्परामेंट, भगवान से क्या संबंध रखना है, वो क्या सुनोगे, भगवान को अपने को भगवान को गुरु समझोगे, पिता समझोगे, माँ समझोगे, या आप भगवान को शिष्य अपना पुत्र समझोगे, ये सारी की सारी बातें टेम्परामेंट में आती हैं। जी महाराज जी। जी महाराज जी। अच्छा ठीक है। बी पार्ट में ये क्वेश्चन था महाराज जी, ट्राई टू कीप योर फीलिंग्स अंडर कंट्रोल। माय हाँ, क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय दिस। फीलिंग ऑफ द कंट्रोल, यानी संसार में तुम रह रहे हो तो गुस्सा आएगा तो गुस्सा को कंट्रोल रखो। अच्छा इतनी बात नहीं है ये। अब काम क्रोध आएगा तो काम को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा जी ये तो महाराज जी ये इमोशनल व्यक्ति जो है वो संसार में चलता नहीं है, साधना में बिल्कुल नहीं चलेगा। इन महाराज इमोशन भगवान की ओर मोड़ना पड़ेगा, यूं नहीं चलेगा। जी महाराज जी, मैंने ये देखा है, जैसे कि कोई आश्रम में कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होता है तो जनरल पब्लिक काफी तालियां मारते हैं, काफी इमोशन दिखाते हैं, लेकिन रामकृष्ण की जितने सन्यासी हैं वो बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं और कोई इमोशन या कुछ कुछ नहीं दिखाते हैं, जबकि वो एंजॉय कर रहे हैं। वो तो यहाँ तक कहा ब्रह्मानंद जी ने, या कहीं पे कहा है कि जो लोग इमोशन ज्यादा होता है ना, बच्चे गृहस्थ लोग जो चिंताते हैं ना, तो फिर रात को भी वो अपनी बीबी के साथ में इमोशन निकल जाता है। यहाँ तक कहा है वहां पे। क्या महाराज सुनाई नहीं दिया। अरे आध्यात्मिक विषयों को नहीं करोगे तो वो सांसारिक विषय में इमोशन निकलेगा। हाँ मैंने तो ये कहा कि जो लोग भजन कीर्तन में खूब उछलते कूदते हैं, नाचते हैं, तो वे रात को फिर बिस्तर में भी इमोशन निकलता है उनका। ठीक है। हाँ। बाप रे। बाप रे बाप। जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 4, पेज 155, स्टिल वर्क। हाँ ये आपने बताया था रजस और तमस के बारे में। आर द पीपल हु आर स्टिल वर्किंग एंड डूइंग जॉब्स इन रजस एंड तमस, वो तो रहेगा। हाँ आपने बता दिया इसको। डज इट मीन दैट दे आर जप एंड मेडिटेशन एंड इम्पॉसिबल टू बी अटेन्ड? हम तो जब भाई ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण जितना कम होगा, सात्विक गुण तो होना चाहिए ना, बिना तब के कैसे काम चलेगा। महाराज जी ये जो नींद जो है, चिंता स्लीप जो है, नींद जो है, ये तो तमोगुण में माना जाता है। लेकिन हाँ, अगर नींद अगर नहीं हुआ तो लोग तो पागल हो जाएगा। हाँ, अगर 8 मतलब नींद अगर 5 घंटे रहे तो ठीक है, 8 घंटे रहे, मगर हमारे को 8 घंटे नींद चाहिए, नहीं तो हम पागल हो जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। हाँ तो इसका मतलब एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। वही 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 है, तमोगुण और रजोगुण तो जीवन में रहेंगे, हाँ तो बैलेंस तो करना सादा पड़ेगा। महाराज जी, जो जितना रियलाइज सोल है स्पिरिचुअली, उनका भी रहता है क्या? वो सोते हैं कि नहीं सोते हैं। सोते हैं, उसको मिनिमाइज कर दिया काफी। अच्छा, रजोगुण रहता है?
रजोगुण भी रहता है। स्वामी रजोगुण विवेकानंद के का बिना कर्म काम किया, कैसे करेंगे? इतना कर्म किया स्वामी जी ने, लेक्चर दिया, तो क्या वो सत्वगुण में बैठकर किया था क्या? रजोगुण में ही काम कर सकते। ए जी भगवान, महाराज। गीता जी में महाराज। पढ़ो, गीता में बहुत सारा गया है सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण के बारे में। जी महाराज जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ महाराज जी। जी महाराज जी, काइंडली एक्सप्लेन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, द माइंड इज टू बी रेज्ड स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द ग्रॉस। ये तो हो गया है, आपने बताया अभी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पेज 156, लाइफ इज इटर्नल, what does it mean? Does it mean that life ends here and continues somewhere else? मैं ये अपने बताया। मरने के बाद में पुनर्जन्म होगा तुम्हारे संस्कारों के अनुसार, हाँ हाँ, जैसे चक्कर चलता रहेगा। वो इसी को इटर्नल बोला, समझ में आया महाराज जी। हाँ इटर्नल, तो उसके बाद में आत्मा तो और भी इटर्नल डिस्कस हुआ ना अभी। अब भी हाँ बताया। हाँ हाँ, आपने बताया अभी। तो इटर्नल का सेंस आत्मन का सेंस में है या रीइंकार्नेशन का सेंस में है? तुम प्रश्न उसको पढ़ो ना, फिर से पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ूं या द टेक्स्ट नहीं, पढ़ूं? तुमने जो टेक्स्ट से पढ़ो उसको। अच्छा, 156। The difficult attempt, I think besides it isn't impossible for you. टेक्स्ट में तो यहाँ, हाँ ये है, लाइफ इज इटर्नल, द स्पैन ऑफ मैन्स लाइफ इज at the most 100 years. Give up the pleasures of these 100 years if you want to enjoy eternal life and with it eternal bliss. हाँ, ये मैंने अभी डिस्कस किया। तो हाँ हाँ, अंदर का bliss आपने बताया। आत्मा जो है वो इटर्नल यानी अमर है, अजर अमर है आत्मा। हाँ, और आत्मा जो है वो आनंद स्वरूप है। तो अगर तुम आत्मा के इटर्नल यानी सब समय रहने वाले आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये छोटे मोटे 100 साल के आनंद को छोड़ दो और लग जाओ। जी महाराज, जी महाराज, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में, पेज 157 from the text. It is best way to start with dualism. If you proceed a little along this path, you will find that you will naturally lead to non-dualism. So ये explain कीजिए. Right from the childhood we know that the God is antarjami and comes to know all our thoughts. Is this attitude a dualism or non-dualism? तो तभी जो हम तो प्रारब्ध तो ड्यूअलिज्म से ही करते हैं। भगवान मेरे से भिन्न है, मेरे भीतर भी है जो भगवान है, गॉड इवन इनसाइड मी, दिस इज आल्सो ड्यूअलिज्म। मैं और भगवान अलग हैं। अच्छा, हाँ, अधिक आगे बढ़ने पर क्या होता है कि मैं जानता हूं कि मैं और भगवान एक हैं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। अच्छा, जिस भगवान को मैंने कभी बाहर समझा था या लेकिन अपने हृदय में समझा था, यानी मैं हूँ ध्यान करने वाला और हृदय में भगवान है, मेरे भीतर भी है, लेकिन ये अभी मैं भिन्न हूँ दोनों से, ये ड्वेलिज्म है। लेकिन ध्यान करते करते जब साधना में आगे बढ़ेंगे तो अद्वैत आएगा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जो ब्रह्मचारों था वो और मैं आत्मा दोनों एक हो गए, ये अद्वैत का भाव अंत में आता है। जी महाराज जी, जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता हूँ हमारी, पेज 157, काइंडली एक्सप्लेन, सो लॉन्ग एज यू हैव द थॉट ऑफ गॉड इन यू, sin विल नॉट अफेक्ट यू। इसमें क्या सोचने का है? अगर मन में भगवान का चिंतन होगा तो पाप का चिंतन कैसे आएगा? अच्छा, अरे जो चीज मन में एक चीज होगी तो। हाँ हाँ, अच्छा, जी महाराज, जी महाराज। और माँ शारदा ने बंगला में बड़ी अच्छी बात कही है, जे इष्ट चिंतन करे तार अनिष्ट के मन करे होते पारे। जी महाराज जी, जी महाराज जी। पढ़ाई अच्छा, नहीं है? हाँ पढ़ा है, लेकिन इसी सिलसिले में मिल जाता है। हाँ इष्ट चिंतन, तो इष्ट और अनिष्ट हो गए तो। हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज,
जी महाराज जी महाराज। ये तो छोटो कथा पर प्रश्न करे पूछे किसके, हे भगवान। Okay. Question, next question में जाता है. It is understood what the serious consequences is solitude. Maharaj, question number 9 में है, page 161. It is not understood what the serious consequences in solitude are. What could be the mutual help and guidance need in solitude? भगवान श्री राम कृष्ण बोलते थे solitude में जाओ, solitude में जाओ, लेकिन अभी महाराज जी बोल रहे हैं solitude में एक partner भी ले लो. तो ये what are the consequences? हाँ, अकेला जाओगे, रहो ना, 24 घंटे रहोगे तो दोबारा को मेडिकल असाइनमेंट में भेज देंगे, वहां पे पागलखाने में भेज देंगे, रहो के देखो ना। अच्छा, 24 घंटे में पागल हो जाओगे अकेला रहने से, इतना आसान है क्या? मोबाइल फोन भी नहीं ले जाना, नहीं तो मोबाइल फोन के, मैं अकेला था, मोबाइल फोन ले गया। अकेला अकेला रहना कितना आसान है क्या? दूसरा, एक भक्त और दोस्त होवे, दोनों साधना करें, किसी आश्रम में जाओ, आश्रम में एकांत में रहो, अपने कमरे में रहो, लेकिन खाना खाने साथ में बैठोगे, आरती में अटेंड करोगे और एकांत में रहोगे, ये चलेगा। जी महाराज, जी महाराज। नेक्स्ट है महाराज जी, how the solitary retirement is also great help to the spiritual aspirant simply by sitting silently in the secluded nook of a garden or the solitary bank of a river or on the lonely outskirt of a vast open field or shut up within your own room, you can profit much. ये कैसे प्रॉफिट मिलता है? एकांत में रहो, कमरे में चुपचाप बैठे रहो, वो भी एकांत बस हो जाता है, माइंड शांत हो जाएगा। नहीं तो माइंड बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। हाँ, हमारी अवस्था ऐसी है कि हम अगर एकांत में भेजेंगे तो मन एकदम रेस्टलेस हो जाएगा। हाँ, बड़ी मुश्किल की बात, क्या करें? हाँ, तो जिसको महाराज जी आश्रम में जा पाते, ये हम लोगों के लिए नहीं, थोड़ा एडवांस हो गया साधक, उसके लिए है कि भाई तुम एकांत में बीच में रहा करो। जी जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है 152 पेज में, द सेल्फ सरेंडर एंड एवरीथिंग विल मैनिफेस्ट फ्रॉम विद इन थ्रू योर साधना, लीव एवरीथिंग टू गॉड, resign yourself wholly to him. My question is, does self surrender and resignation to God comes automatically once you are successful in meditation? अगर मेडिटेशन अच्छा होता है तो सेल्फ सरेंडर और ये दोनों आप ठीक ठाक अपने से हो जाता है क्या? भक्ति से आएगा, हो जाएगा। थैंक यू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, does the attitude of unselfish work become tapasya? How to make every day ये तपस्या through my work? रीड गीता पढ़ो ना, गीता में सभी को कर्म जो है वो कर्म तपस्या बनाया ना, सारा गीता कर्म के ऊपर तो है। महाराज जी मेरा क्वेश्चन है, महाराज जी मेरा क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन, महाराज पढ़ू महाराज जी, पढ़ो। मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको जो काम दिया गया है उसी काम में आप सधर्म निधन श्रेयो परधर्म भयावहो, गीता में जो बताया है उसको अगर ठीक से करते हैं तो तपस्या जैसा हो जाता है, होता ही है। तो फिर तपस्या हो जाती है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में उतना एकाग्र मन से अपना स्वधर्म करना है, वो तपस्या है। और स्पिरिचुअल बैठे हैं, बहुत ध्यान जब कर रहे हैं, मन इधर भाग रहा है, वो तो यूजलेस है। Thank you महाराज जी, thank you. Kindly explain. At first, the aspirant has to pin his faith. It may be blind faith to the precepts of his guru or some great soul. Then only can he advance towards the goal. ये तो blind faith का बारे में आपने बताया। हाँ, पहले अगर फेथ हो जाने से, पहले ब्लाइंड फेथ ही रहना चाहिए और रियलाइजेशन होने के बाद फेथ रहने का कोई जरूरत है नहीं, ये तो आपने बताया कुछ देर पहले। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है महाराज जी, क्वेश्चन नंबर 14 पेज 155, will the mind be raised to the shuttle
will the mind be raised to the shakti, then the causal state still further to Mahakarana, the great cause, if one is successful in it. हो गया, चलो ठीक है महाराज जी. Thank you महाराज जी. Thank you. प्रणाम महाराज जी. चलो रीता. सतीश नहीं आया ना? सतीश. प्रणाम स्वामी जी. सतीश महाराज. सतीश जी आ गए. सतीश कभी रीता आ गया. ये स्वामी जी. सतीश तुमको ले लो. ओके जी पटेल. रीता चलो. Rita here. Yes. I'll ask. Yes. Page 179, second para. Sri Maharaj says the best discipline is the practice of Brahman consciousness. What is the meaning of Brahman consciousness? How to practice the discipline of Brahman consciousness? When is it to be practiced? देखो ये उन्होंने वहां जो ये है ना वो पूरा पैसेज, वो देखो तुमने पैसेज जो है ना एक छोटा सा लाइन पढ़ा है, ये पूरा सारी साधना डिस्क्राइब की गई है. वो you have to again, मैं भी बोल रहा हूँ again, the whole passage is part of the whole passage we have done, read. Yes. महाराज कौन सा पेज है? अब पेज उससे पूछो. 179. Maharaj, she has gone 2003 ahead. edition. Maharaj, she has gone ahead of the, I think, Yes. ये 172 तक है महाराज. 172 तक है. हाँ 179 I have gone Brahman ahead. consciousness है. हाँ 172 तक है कोर्स में. Post graduation. हाँ नहीं कोई बात नहीं महाराज, पूछने दीजिए. अच्छा ओके. वो है उत्तम ब्रह्म सद्भावः ध्यान भावस्य मध्यमः जप स्तोत्रो अधमो भावः बाह्य पूजा अधमाधमः. Yeah, best is ब्रह्म सद्भाव, ये ना ब्रह्म consciousness is best. Next is ध्यान, remaining at the meditation level. Third is japa stotra is the lower level, and finally the lowest level is bahya puja. So now the whole thing is described where you have read it. The whole thing is very clearly described there. So what this is continuously thinking of Brahman is the highest, is the best, but it does not come so easily. You have to start with external puja. Then you have to do Japa Stotra, then you have to do meditation, and finally you will come to Brahma Sadbhav. Oh, yes, Swamiji, now I understand. Now it No, is clear. not understand. You read the whole passage again. I will read it again. Swamiji's next question. Page again, I have gone ahead. I told you that day. Page 183, last para. Raja Maharaj says, to cross Maya's bounds is indeed a hard task, but not an impossibility. To me, it is an impossibility. What is Maya's bounds? How to practice? What to practice to cross Maya's bounds? Why are you worrying? You are nicely in Maya, enjoying it. No, not at all. Not at all. महाराज मैं बताऊं महाराज? हाँ बताओ. वैसा है. बताइए. आज ही हमारा माया के ऊपर डिस्कशन है. जितने चीज मन और बुद्धि के एरिया में है सब माया है. मन के पार ऐसा है कि we are all in Maya. And we are in Maya because we want it, we enjoy it, we like it. I know. Yes, correct. And because it is there, most of it, for most, it is impossible because we like to remain in Maya. Yes. अरे खाना पीना बढ़िया मिल रहा है, Zoom मीटिंग हो रही है और टीवी भी देख रहे हैं, लोगों से काम भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं,
we are so happy with this. बट ये तो विद्या माया, तो विद्या माया हो गया महाराज जी, विद्या माया हो गया। विद्या माया, अविद्या माया अविद्या ही, माया। विद्या नहीं अविद्या। अविद्या माया है। जूम मीटिंग अब विद्या माया हो गया ना। No, but how to cross over the bounds? No, but you will be able to cross bound if you want to cross. You don't want to cross, that's why you are not able to. What is the sign that one has crossed over the bounds of Maya? अरे स्वामी जी is the sign. Swami You- Vivekanand is the example. No, Oh, by the time when you cross the Maya, your cuff will stop. Maharaj ji, How Zoom many meeting will months also your stop. cuff is going on? See, many years. Now, how Many many months. your cuff, Rita? Yes, Swamiji. For you are having cuff for so many days. How many days? No, now again it has come because of the cold. No. Continuously last month also was there. Earlier Continuous, also there. Yeah, So- actually last 8-9 months. No, 8-9 months, na. Mm. So when your cuff will go, your Maya will go. Yeah, when Maya Okay. will go, Then I'll try to take away the cough. Very good. Third question. Swami Brahmananda says the mind is disturbed by many evil influences. This is true and affects us, as it is a great hurdle in one's sadhana. How to remove such influences? What is the practice? See, so many ill-will influences. TV, Yes. newspaper, gossip. Huh. Then WhatsApp, WhatsApp, what is that? all mobile. But in fact, Mobile is the problem. living in solitude, giving up all these things. Huh. Be No. very careful. That is the thing. Yes, Create yes. noble Swamiji. influences around yourself. All these things we know. Yes. Thank Okay. you, Swami. Yes, Swamiji. Thank you, Swamiji. Satish, आ जाओ. Pranam Maharaj. Maharaj, first question, page 157. Whatever work we may be engaged in, we must think of God always. Maharaj, after the japa and meditation session, we keep the spiritual mood, but that does not last long. Once we reach the office and interacts with others, the spiritual mood is lost. My question is, how to maintain the spiritual mood, that is thinking of God throughout the day when the mind is engaged in other activities? You see, you know, the whole of spiritual life is this only. Spiritual life does not mean morning and evening you remain and do japa. Whole day you have to remember. Right. You remember. Have you read the book Practice of the Presence of God by Brother Lawrence? Yes. नहीं मालूम, मैं Yes, इंग्लिश yes. समझ में नहीं आया। Beautiful book. No, उसको पढ़ लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी, 50-60 पेज की है छोटी सी किताब। अच्छा, महाराज उसकी समझ में नहीं आता, उसमें यही वो क्या है कि उसको बहुत सारा काम करना पड़ता था, उसको बैंक में जाना, वो ये मार्केट में जाना पड़ता था, मॉन्क था लेकिन मार्केट में जाना पड़ा था, संसारी काम करना पड़ता था, किचन में काम करना पड़ता था, हाँ वो सब काम करना पड़ता था, उसमें वो कंटिन्यूअसली भगवान का स्मरण बनाए याद रखता करता था। हाँ। अब जैसे इसीलिए अगर ऑफिस में जाओगे तो इसलिए क्या करते हैं मालूम है, एक माला पहनने की हैबिट बना लेते हैं, माला में एक लॉकेट लगा लेते हैं, उसमें ठाकुर का फोटो लगा लेते हैं, तो अब माला का कभी बीच बीच में ऑफिस में रहोगे तो उसको स्मरण होता रहेगा, या किसी ने एक ताबीज बना लिया उसमें स्मरण होता रहा, और बीच बीच में सामने टेबल पे फोटो, अपने इष्ट का फोटो लगा लिया, बीच बीच में थोड़ा सा एक कैसेट चला दिया, इस प्रकार से कर करके यानी
वो दिस इज ये उसको मन को हमेशा भगवान में बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना संभव हो उतना करना चाहिए। वो आप अकेले रहोगे कर सकोगे ये तो संभव नहीं हो, लेकिन इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा पूरा कॉन्सेंट्रेट तो नहीं होगा, ध्यान जैसा तो नहीं होगा, लेकिन ये करो। और ब्रह्मानंद जी ने यहाँ पे हमने पढ़ा ना, इसमें भी लिखा है उन्होंने, बिफोर यू बिगिन द वर्क प्रणाम, गॉड, रिमेम्बर गॉड, डू इट इन द एंड। हाँ, तो हम क्या करते थे कि देखते थे ना, तो हमने बना लिया था कि बिफोर यू सी ए पेशेंट रिमेम्बर गॉड, and when you have finished seeing the patient, again remember the God, or in between they remember God. महाराज जा तो करते रहते तो हैं, बीच एक बीच में पेशेंट को भूल जाते हैं। पेशेंट को करते हैं, तब से होती है भूल कोई बात नहीं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उसको करते रहे। ठीक 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 महाराज। नेक्स्ट महाराज, verse 61, other paths are difficult, so he asks you to perform japa frequently and along with it think of Ishta. Maharaj, here my question here is, Maharaj is not asking us to visualize Ishta, but to think of Ishta while performing japa. एक ही चीज है, एक ही चीज है महाराज। विजुअलाइजेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता, तो लेकिन ये जो प्रेजेंस तो बनी रहती है, तो दैट इज आल्सो इक्वली गुड। इक्वली गुड। विजुअलाइज तो क्या है ना, ये ध्यान के समय विजुअलाइजेशन होता है, जी जी, लेकिन प्रेजेंस बनी रहेगी, प्रेजेंस बनी रहती। महाराज ज्यादा देर विजुअलाइजेशन ज्यादा बीच बीच में उसमें रुकावट आती रहती है और ज्यादा देर नहीं चलती, वो विचार आ जाते हैं ना बीच में। कोई बात नहीं, ऐसा है कि ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कई संतों की जीवनी में है। सेंट फ्रांसिस कैसे करते थे, और दूसरे सेंट्स का भी है। तो एक नन का है, मैंने सुना कि वो बहुत बिजी रहती थी, तो बीच बीच में मन ही मन भगवान से बात करती रहती थी। अरे देखो मेरे को ये खाना बनाना है, देखो इसमें मेरे को अभी दाल डालनी है, ऐसा बीच बीच में अपने अपने मन से भगवान से बात करती रहती थी। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुमको मिल जाए। जी महाराज, जी महाराज। नेक्स्ट महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसा है ना कि ये पढ़ोगे भी और तुम अपनी खुद की टेक्निक बना लो। राइट राइट महाराज। हाँ, अपने खुद की सोचो। जी जी जी, वो तो है महाराज, वो तो है, तो ठीक, वो तो है महाराज। अच्छा, नेक्स्ट है, while quite quoting from Gita regarding being moderate in food and sleep, महाराज says that is why moderation in habits, in food and recreation, in everything has been so strongly enjoined in Gita. महाराज यहाँ रिक्रिएशन का क्या मतलब है? रिक्रिएशन यानी क्या है कि तुम अगर टीवी देखो, रिलीजियस टीवी देखा, थोड़ा भजन गाया, लोगों से डिस्कस किया, बातचीत किया, थोड़ा सा जीवन में, पूरा हमेशा टेंशन में तो जीवन नहीं रहता है ना। राइट राइट महाराज, यही मेरा कहना। किसी प्रकार से हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हमेशा जब ध्यान भी नहीं कर सकते और हमेशा जहाँ टेंशन में भी रह सकते हैं, तो उसके अंदर बीच में एक बनाए रखो। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, how to meditate on the meaning of mantra which is not the name of Ishta but is a description of qualities of Nirgun Brahma. ओंकार ले लो, ओंकार तो निर्गुण ब्रह्म है। हाँ जी जी महाराज। हाँ, तो उसमें क्या, तो वो तो किसी इष्ट को वो मेंशन नहीं करता, तो उसका कैसे जब वो नहीं, वो ओंकार जो है ना, परमात्मा जो है, वो सर्वव्यापी परमात्मा, वही इष्ट हुआ। राइट राइट महाराज। यतीश्वरानंद जी तो कहते थे, वो कहते थे कि ऑल परवाइडिंग कॉन्शियसनेस इज द ईस्ट ऑफ ऑल। सर्वव्यापी परमात्मा सबका इष्ट है। हम नहीं कर पाते, इसलिए तुमको राम दे दिया, कृष्ण दे दिया, एक रूप बना दिया, वो बना दिया। लेकिन सच पूछा जाए तो राम और कृष्ण भी ये सर्वात्मा ही है, तो परमात्मा ही है। तो परमात्मा जिसको आप निर्गुण निराकार कहोगे, वो सबका इष्ट है। तो उसके भी तो है, अरूप है, आनंद स्वरूप है, स्पर्श है, रूपम स्पर्श गंधम असत्यवत। सब जगह उपनिषदों में तो सब ये अरूप का ही वर्णन है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो अरूप, स्पर्श,
आनंद, सर्वव्यापी, ये कितने सारे तो सद्गुण हो गए इसके निर्गुण निराकार के। Next question, Maharaj. When a man does not find happiness in the world, then he grows restlessness and attachment to God increases in him. Maharaj, does this mean that restlessness due to worldly misery and unhappiness is a blessing in disguise? अरे यस As यस it- यस, Yes. अरे अर्जुन को क्या हुआ था? जी महाराज, डिप्रेशन हुआ था, डिजेक्शन, डिप्रेशन हो गया था, रेस्टलेस हो गया था, व्याकुल हो गया था। ये तो इतनी बड़ी वो है ना भाई, इतनी बड़ी ब्लेसिंग है। राइट राइट, ये ब्लेसिंग है। मुझे कुछ भी अच्छा लग रहा है। कितना बड़ा वर्णन है उसका, सारा डिप्रेशन का इतना डिटेल वर्णन मिला है गीता में। जी, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है तो वहां होना ही चाहिए। जीवन में कभी न कभी ऐसी व्याकुलता आनी चाहिए। जी जी महाराज जी, तभी हम उस तरफ मुड़ सकेंगे, भगवान की तरफ मुड़ सकेंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इन परफॉर्मिंग जपा समटाइम्स आई फॉरगेट एवरीथिंग, महाराज जी कहते हैं इसमें पैरा 170 में। तो महाराज जी आंसर करते हैं दैट इट इज एन इम्पीडिमेंट अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा। महाराज ये कैसे है? पतंजलि योगा में ऐसा क्या वर्णन है इसके बारे में? इन परफॉर्मिंग जपा समटाइम्स, इन परफॉर्मिंग जपा समटाइम्स आई फॉरगेट एवरीथिंग। तो ये पतंजलि योगा ऐसा है, अंतराय जो है, ऑब्स्ट्रक्शंस है पतंजलि योग सूत्र में वर्णन। व्याधि, ज्ञान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, भूमि प्राप्त नहीं हो रही, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ भी नहीं रहे हैं, नीचे भी नहीं जा रहे हैं, बीच में अटके हुए हैं। ये आई फॉरगेट एवरीथिंग का क्या मतलब है महाराज? नहीं, ये ऐसा है कि वो अब पतंजलि योग सूत्र का वर्णन अगर कहा तो वहां पे तो इतना ही है केवल। जी जी जी, यानी अटक गया हूं मैं, अलब्ध भूमिकत्व। मन में क्या है कि मन में कुछ विचार नहीं आ रहे हैं, सब कुछ भूल गया हूं मैं, इष्ट को भी भूल गया हूं, अपने को भी भूल गया हूं, अटक गया हूं। जी और dullness हैं? or dullness, you know, no, he is asking from Patanjali Yoga Sutra, that is the point. वैसे तो everyone, this is a description of the sadhak, but the question here is, it is regarding reference is given to Patanjali Yoga Sutra, that is why the question is asked. महाराज मैं ना ये है ना भाई? जी हाँ, यही है महाराज। महाराज मेरा ये कहना है कि हमें दूसरी समस्या होती है इंटेलेक्चुअल डायरिया, वो दिमाग में विचार आ जाते हैं, तो हमारी ये समस्या होती है महाराज। ये नहीं कि फॉरगेट एवरीथिंग, तो वो बताते हैं ना, तो वो तो ये तो विक्षेप हो गया, उसमें फिर क्वेश्चन क्या उठता है? ये तुम ध्यान ठीक से नहीं कर रहे हो जी। सो इट इज नॉट ए ब्लैंकनेस की बात नहीं है, ये तो ब्लैंक होते ही जैसे ही मन ब्लैंक होगा कि संसार आ जाएंगे। तो साधना में सावधान रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, मन को कंटिन्यूअसली भगवान में लगाए रखना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा महाराज। महाराज यहाँ पर तो समाधि की बात हो रही है ना, समाधि या एक प्रवाह बना, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। हाँ, वो किसमें है वो दुआ एक महाराज, यहाँ पर समाधि की बात हो रही। क्वेश्चन है, इज परफॉर्मिंग जपा समटाइम्स आई फॉरगेट एवरीथिंग, व्हाई इज इट सो? तो आंसर में बोल रहे पतंजलि इज द ओपिनियन, पतंजलि इज ऑफ opinion that this is an impediment. Meditation means to think of him continuously, and when this is intensified, when he is perceived directly, it is samadhi. ना, तो ऐसी है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, वो समाधि नहीं हो पा रही है, बच्चा अटक गया हूँ, that is the point. Swamiji, can I explain?
तो कंटिन्यूअस ध्यान बना रखना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है, सो इट इज एन ऑब्स्ट्रक्शन, सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन है। अंतराय जो आप बोल रहे हैं। Can I give an example? ठीक है। Is he an कुंडू- advanced aspirant, Maharaj ji? Is he an advanced aspirant? वो जो क्वेश्चन है उसके ऊपर है जी। Swamiji, can I give an example? I have a very telling example from yoga. यस For example, when I take Yoga Nidra, in Yoga No, Nidra, Yoga Nidra and these things are very different. no, Don't no, mix going in the into, going into no man's land. Yoga Nidra has nothing to do with Patanjali Yoga Sutra. No, this no man's land, you know, you are not alert. You don't go, you go into a state where you're not alert. You just go into a blank. No, don't mix up the whole thing. Okay. Yoga Nidra is very different. Here it does not ally. Here he is only telling, Patanjali has said that sometimes as you go, there will be an obstruction. Okay. That we have discussed. Kundu? Pranam Maharaj. Yes, Maharaj. Huh? Maharaj, page 153, make your mind strong enough through tapasya. So what sort of austerity is meant here? All austerities make your mind strong because of मानसिक three प्रकार की तपस्या होती है. हाँ महाराज. Not speaking. Then मन में एक प्रकार के मौन करना है, एक आसन में continuously sit for a particular type. All tapasyas, they strengthen the mind and they can be practiced only by a strong mind. Repeated, नियमित रूप से कुछ भी करना. Is for that where you have got internal ekagrata has to be there. Swamiji ko you read, Swamiji says, whatever you do with intense concentration, it becomes tapasya. Matter of fact, Swami Vivekananda's life, someone has said, I don't remember who, but Swami Vivekananda's life was so intense, and a whole life. It was, if someone will do, he will break down. He was completely whole tapasya, sara jivan hi tapasya tha. So, मन इंद्रियाणाम एकाग्रता परमम तपः, ये कहा गया है. लेकिन तपस्या यानी वो मानसिक और शारीरिक जो कुछ भी काम करोगे इंटेंस कंसंट्रेशन के साथ करो, that becomes tapasya. ठीक महाराज. Then page 155, japa and meditation. This is discussed, but my question is, japa and meditation is impossible unless you transcend the limitation of rajas and tamas. So, does it mean that the japa and meditation that we are doing now is not a proper japa and meditation? How does one transcend it? मतलब rajas tamas को transcend करना ही एक अपने आप में ही एक साधना है. No, अगर हम मेडिटेशन जब करते हैं तो उस समय तो हम तब रजस और तमस को मेडिटेट को ट्रांसेंड करके सत्व में ही तो मेडिटेशन करते हैं, नहीं तो क्या होगा? बिना हिले डोले में बैठते हैं और सोते नहीं हैं और उसके बाद मन को एकाग्र करते हैं, तो ये तो सात्व गुण के ऊपर लेवल पे आ गया, तभी तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं. अच्छा महाराज, ठीक. तो कंसंट्रेशन बाय गोइंग टू सत्व ऑटोमेटिकली रजस तमस से दूर चले जाओगे. अच्छा, दैट मीन्स जैसे जब मेडिटेशन खत्म हो गया उसके बाद थोड़ी देर और निकल गया, then mind again comes back to the level of rajas and tamas. Yes. Achha. Yes. But see to it that at the time of meditation you don't become too restless. Yes. And एकदम हाथ पैर हिला रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, या फिर मन को एकाग्र है, वो नींद आ रही है, ये नहीं होना चाहिए. ठीक महाराज. Yes महाराज. Now page 168. You must draw up a routine and must not take any work which may stand in the way.
So, but often family and social commitments come in the way. What to do in such cases? You can't help it. Don't worry about these things. You can avoid. I mean, as far as possible, you avoid. You cannot avoid. Family commitments are there. ठीक महाराज. You plan it in such a way that you have got time for family commitments. So don't disturb them. अच्छा, रूटीन के अंदर वो भी केटर कर लेना चाहिए. हाँ, रूटीन में बना लो इसको. अने अब हम जैसे डॉक्टर थे, हमारे हाउस जॉब करते थे या कुछ करते थे, तो भी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का रूटीन कर लेते थे, तो मेडिकल हॉस्पिटल में थोड़ी करते थे. ठीक महाराज. हाँ, ठीक. Those hours are different. ठीक महाराज. यस. उसके अंदर थोड़ा सा बीच बीच में, बल्कि वहां पे भी बॉस के लिए बैठे हुए हैं, तो एक किताब लिखा के इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट निकाल के पढ़ने लग गए. जब आएंगे तब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी होगी. ठीक महाराज. स्वाध्याय भी हो गया. हाँ, तो इस तरह का कर सकते हैं. इसमें कोई बात नहीं. प्रणाम महाराज. थैंक यू महाराज. हो गया. हाँ महाराज. सुबीर मजूमदार. हाँ, प्रणाम महाराज जी. सुबीर. हाँ महाराज जी, अभी पूछता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड महाराज जी. महाराज, पहला सवाल था, ऑन पेज 149 स्वामी ब्रह्मानंद टॉक्स ऑफ फूड. उस फूड के बारे में ही डिस्कशन था, टू रिड्यूस क्वांटिटी टू हाफ. तो मेरा सवाल औरों की तरह था, हाउ इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस सो मच एज बॉडी नीड्स मिनिमम कैलोरीज फॉर डे टू डे? इज इट पॉसिबल? अब मैंने अपना फूड 3/4 कम कर दिया है, और उसी में मेरे घर वाले सब लोग बोलते हैं कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, ये सब बोलते हैं, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. 3/4 पे तो मेरे को अच्छा बढ़िया चल रहा है, लेकिन मेरे को अगला स्टेप जो हाफ बोल रहे हैं उसको लेने में मेरे को दिक्कत महसूस हो रहा. कैन आई डू इट और नॉट? नो. अब पहला ही 3/4 किया है, उसको एवरी मंथ कुछ दिन तक चलने दो, और एवरी मंथ उसका वेट रिकॉर्ड करो. नहीं, मैं कर रहा हूँ, काफी महीनों से कर रहा हूँ. अब वेट वैसा ही है, कम नहीं हुआ ना? मेरा वेट 80 कुछ था, उससे 2 किलो कम हुआ है, बट कुछ ड्रास्टिक नहीं हुआ है. बस ठीक है, दैट्स ऑल राइट. हाँ, because I feel fresh also, no problem. So should I try to reduce further? No. एक्टिव लाइफ के लिए नहीं है ये. अच्छा. ये those who are leading a contemplative life, उनके लिए है. जी. ठीक है महाराज. ओके. अच्छा महाराज जी, मेरा अगला सवाल पे शायद आपकी डांट पड़ने वाली, लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा. ऑन पेज 150 Swami Brahmananda seems to say that mind gradually through spiritual practices becomes subtle, and the aspirant is able to understand subtle truths about God. Now, interacting with us over the last 3 years, do you, by your judgment, feel that any of us has made any headway towards learning some subtle truths, or are we still the same? हे भगवान, I don't make any such judgment. ये नहीं बताने का है. हाँ, मैं कैसे समझूंगा? मैं नहीं जानता. I don't make I only answer the questions and forget about it. अच्छा, तो ये हमें खुद को ही समझना पड़ेगा. You decide बाबा, मेरे को क्यों तंग करते हो? अच्छा. तो शुभीर का हो गया. हाँ, मुझे पता था इसमें मेरे को. अच्छा महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज 151 में Swami Brahmananda says, it is he who is protecting us from all miseries and troubles. ये सवाल भी हो चुका है, दिलीप जी ने पूछा था. Do these include worldly miseries and troubles or only spiritual miseries? तो आपने बता दिया कि दोनों है, तो ये हो गया. तो I'll go to the next question. On the same page 151, Swami Brahmananda speaks of visualization of our Ishta during meditation. And after so many years, even now, I initially visualize the whole body during meditation, but later I only visualize the face. Full face तो मुझे दिखता है, but full body जैसे शायद देखना चाहिए वो नहीं दिखता. Is that okay? No, it's okay. It's okay. Okay. Point is ना, यानी एक just hold on है, वैसा नहीं होना चाहिए कि full body पे mind भी disappear हो जाए. वो भी हो सकता है. Now,
You see, important जी is Yatishwaran ji used to say हम्म that वो उसको you think that the form you are seeing is living, divine, blissful. अच्छा हाँ, वो केवल एक फिजिकल फॉर्म नहीं, रूप नहीं होना चाहिए। हाँ एक आनंद स्वरूप हाँ, वो जीवंत ज्योतिर्मय जागृत होना चाहिए, हाँ वो सचमुच है, रियली हाँ हाँ विद्यमान है, ये भाव हाँ ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ लिविंग एक ज्योतिर्मय रूप यस यस वो जो कहते हैं ज्योतिर्मय बोलते हैं, और ज्योतिर्मय का अर्थ क्या है? फिजिकल ज्योति इज मोर नॉट इम्पोर्टेंट एज इट इज द स्पिरिचुअल ज्योति। स्पिरिचुअल ल्यूमिनोसिटी हाँ, यानी वो कि वो कॉन्शियस है, लिविंग है, ब्लिसफुल है, जी आनंदमय। जी ठाकुर का रूप है, तो ठाकुर का बार बार वर्णन आता है, वो आनंदमय रूप है, हाँ तो उसके ठीक है लिए भाई वो कॉन्शियस तो होना ही चाहिए। जी जी वो जी केवल फोटो नहीं है जो हम ध्यान हाँ कर रहे हैं, ठाकुर हाँ दैट जीवंत इज ठाकुर है। जी जी दैट इज मोर इम्पोर्टेंट राइट एंड महाराज माय लास्ट क्वेश्चन पेज 157 पे Swami Brahmananda again says, so long as you have thought of God in you, sin will not affect you. What does that mean? वो तो बोल दिया ना, क्या महाराज? तो भी डिस्कस हुआ था, भी क्वेश्चन हुआ था। हाँ। Someone has asked and I ইষ্ট চিন্তা করলে অনিষ্ট কি করে হবে? अच्छा 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 दैट इज द वन हाँ 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 इष्ट हाँ वो माँ की कथा जो है ठीक है ठीक है ठीक है राइट राइट गॉट इट सेम सेम मालिनी, come on, मालिनी। दैट्स ऑल प्रणाम महाराज Pranam Swamiji. The first question is, learn to keep your feelings in control. Swamiji, can you please elaborate on this? Because I have noticed that monks and sannyasinis, they have tremendous control. So I would request you to just share some of your, what are the instructions given to brahmacharis in the initial stages to train them to control their feeling? Because how do they achieve such I see a totally different. We don't have special instructions. We have got the rules, and rules of brahmacharis are there. We get up early in the morning, do meditation, do exercise, don't do this, etc. Those things are restrictions are there. And then ultimately mantras, ultimately after 4 years of discipline of brahmacharya, they get brahmachari diksha. So brahmachari diksha also, there's rules are there. So certain rules and expressions are made, and that is love God. Worldly attachments, remain away from worldly attachment, they will lead to bondage. Now these are the things you follow, that's all. Okay. You make your own rules, that's all. Swamiji, the second question is, it is very hard to meditate on the form and the name at the same time. One can meditate only on the sound with full concentration. The form is the fruit, the result of a process. It happens. It cannot be forced. Can one desist from all attempts to meditate on a form? Because I can't imagine any form, no matter what I do. Like, that's all right. That's all right. If you have got, now you need not elaborate upon form, etc. But if you cannot meditate on form, meditate only upon the name. That's all. The matter ends there. Fine, fine. The third question is, in the earlier Zoom meeting, you had mentioned that for a sannyasi, there is no self-defense. You went to the extent of saying that you should not even kill an insect. Now, my question to you is that for those who are aspiring to rise up higher, improve themselves higher and higher, should they also try to imitate a sadhu like you? And should we also not kill insects and desist from any form of internal pratika? Let Lord surrender to God and let him do the defense. Hare Baba, only yesterday I killed a mosquito. Okay, I got my answer. Okay.
Swamiji, one more thing. One question emerged as they were discussing. Now, doing the sadhana, मैं ही ब्रह्म हूँ. Huh? Now, on realization, when a person, suppose he experiences this, that I am Brahman, does that state that I am Brahman, once you've crossed over, does it never come back? Does Maya never come back? Now, don't follow. It's a purely theoretical question. Okay. There's no question. Okay. Yes, it's a theoretical question. That's right. Nivedita. हाँ महाराज, 1 minute. हाँ, तुम्हारा तो 5 शुरू के 4-5 लाइन से हो तुम्हारे गए हैं, 3 हाँ. अच्छा, पहला प्रश्न महाराज ये, what is पढ़ो, going पूरा सब well? पढ़ो. हाँ? What is going well spiritual practice? ये पहला ही जो है महाराज बोल रहे हैं ना, whether your spiritual practice is going well, क्वेश्चन पूछ Yes, रहे sir. हैं. Yes, तो sir. मेरा प्रश्न है, what is going well spiritual practice? अरे what is going, কেমন আছে, ভালো চলছে তো, এইরকম বাংলা. हाँ, अच्छा अच्छा, ওই বাংলায় হলো ভালো চলছে তো, এই ভালো তো চলছে তো, अच्छा, ओके. इंग्लिश. अच्छा, तुम्हारी सेकेंड प्रश्न. तुम्हारी साधना कैसी चल रही है, बस ऐसे अच्छी चल हाँ. रही है तो ये बात. ठीक है. दूसरे प्रश्न का आपको जवाब देना ही पड़ेगा. प्लीज एक्सप्लेन स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट स्टेप बाय स्टेप. देखो ऐसा है, स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट यानी कैसे बढ़ते हैं, कैसे कैसे होता है. पहले इष्ट आया, इष्ट है, हमारे इष्ट का ध्यान करने लगे, तो इष्ट का ध्यान क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इष्ट का ध्यान के लिए क्लियर नहीं हो रहा है. फिर कहा नहीं, लीला चिंतन करो, लीला चिंतन किया, फिर धीरे धीरे एक रूप में लगे, उसके बाद रूप क्लियर हो गया, लेकिन वो लिविंग नहीं रह रहा है. पहले तक ध्यान आ ही नहीं रहा था, इष्ट नहीं, चिंतन रूप ही नहीं आता था. अब रूप आ रहा है, वो लिविंग नहीं लग रहा है. अच्छा, उसके बाद लिविंग हो रहा है लेकिन रहता नहीं है, चला जाता है, या फिर दूर चला जाता है, या फिर ज्योतिर्मय नहीं लगता है, आनंदमय नहीं लगता है. और वो अब तुम ऐसा है कि उस स्पिरिचुअल अनफोल्डमेंट का चार्ट नहीं देखा यतीश्वरान जी का? हाँ, देखा है महाराज, इसलिए तो पूछ रहे हैं तो आपको. फिर वो अब तो हो गया वहां पे. नहीं, पर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते. One is attracted towards the Ishta. He starts meditating on it. Then he starts seeing more of divinity in the Ishta. Then he considers that there is ज्योति रूप नहीं दिखे, परंतु इष्ट के प्रति ज्यादा से ज्यादा प्रेम बढ़ता जाए, वो भी ठीक है. अच्छा है, लेकिन प्रेजेंस तो फील होनी चाहिए. प्रेजेंस फील होता, पर दिखता नहीं ऐसा कुछ भी. कोई बात नहीं, प्रेजेंस फील होना चाहिए. अच्छा, दूसरा प्रश्न आपने, तीसरा तो बता दिया पूरे चरण बहुत अच्छे से. इनर ट्रूथ भी आपने बता दिया. हाउ कारण और महाकारण भी बता दिया. इन द बिग. हाँ, ये एक लास्ट प्रश्न जो महाराज बोल रहे हैं, इन द बिगिनिंग स्टार्ट विथ वन मेथड सूटेड टू योर टेम्परामेंट, आफ्टर यू एस्टैब्लिश्ड ऑन इट देन ट्राई अनदर मेथड. व्हाई महाराज इज टेलिंग लाइक दैट, ये बता रहे. ऐसा है, इज ए गुड क्वेश्चन. वो क्या है कि हम करते करते साधना करते हुए क्या कहते हैं कि यदि चाहो तो दूसरी मेथड करो. मैं क्या करता था, मैं अपनी एक्सपीरियंस बोलता हूँ कि मैंने सूफी संत चरित पढ़ा, जैनिज्म की किताबें कितनी पढ़ी, क्रिश्चियन टेक्निक कितनी पढ़ी हैं, डिफरेंट प्रकार के करके उसको जब आप एक साधना में एस्टेब्लिश हो गए, मैच्योर हो जाओगे, उसके बाद में इनमें से कुछ जो है वो मदद कर देंगी. ओह, अच्छा. हाँ, सपोज आज अगर इतने सालों तक आपने गुरु के एक इष्ट, हम लोग को दीक्षा के समय तो एक ही टेक्निक देते हैं ना, तुमको एक पेपर दे दिया, इंस्ट्रक्शन दिया. अच्छा, आपने 20 साल इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर यतीश्वरानंद जी होते आपके पास में,
तो आप जाते हो उनको, महाराज जी ऐसा ऐसा है कह रहा हूँ, तो पूछते कैसा चल रहा है, तो ये चल, अच्छा अब तुम ये करो, you have reached up to this place by one instructions I gave, now you do this instruction. That means there is a different instruction. So after that, curiosity के लिए या even for spiritual practices, some new techniques can be taken up which will suitable for your your advancement in spiritual life. पर ये इंस्ट्रक्शन अब हम अपने आप से तो नहीं ले सकते ना, अब अपने को ही करना पड़ेगा। ओ अच्छा अच्छा, हाँ, यही बोल रहे। एट द मोस्ट तुमने अपने मेरे से डिस्कस कर लिया, या कोई साधक हो जो करने वाला उसको डिस्कस कर लिया, समझे ना, या फिर कोई रामकृष्ण मिशन के कोई सन्यासी हैं, सीनियर सन्यासी हो, उनसे डिस्कस कर लिया कि महाराज ऐसे ऐसे करते थे, अब ऐसी ऐसी अवस्था आई, मैं क्या करूं। Maharaj, this can only happen after you have reached a certain stage. Wait a minute. बाकी मैं ये कह रहा हूँ ना कि अब सूफी techniques are, Jain techniques are there, Christian techniques are there, and you will find some of them will very suit you very well. Okay. हाँ, ठीक है। महाराज मैं ये कह रहा था, you can only do this after you have reached a certain stage, और फिर वहां से आप कोई नया टेक्निक शुरू कर सकते हैं, तो एक स्टेज पहुंचने के बाद ही तो करें। वही बोल रहे हैं तो महाराज। अरे इतने साल से तो हो, 10 से 50 साल से तो दीक्षा करके जब कर रहे हैं। जी कहीं ना कहीं तो पहुंचे ही हैं आगे। हाँ, फिर उसका मॉडिफिकेशन। अब अगर कोई मिल जावे, हिंट मिल जाए तो फट से कहीं अटके हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, वो आगे चले जाएंगे। क्योंकि महाराज भागवत में तो काफी सारे मेडिटेशन के मेथड भी है, तो कभी कभी मुझे मतलब संकोच होता है, शुड आई ट्राई। नहीं महाराज ने आपने बोला है कि एक ही मेथड से अच्छे से करते रहो, इसलिए हम ट्राई नहीं करते। नहीं, वो ऐसा है कि वो एक तो है ना, वो उसके साथ उसके एडवांसमेंट किया जा सकता है। अच्छा, ये बात ठीक है। हाँ महाराज जी, हमें तो आपसे इस बारे में टिप्स मिलता ही रहता है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, हो गया जी, सबका हो गया। थैंक यू। Thank you. ओम शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।